Today, I have none other than Hard. Beautiful. a cat playing around, and you got an idea to create a product out of it. How long did it take for you to develop? 3.5 years. 3.5 years in just development R&D of. Yeah. Cat playing around was a story which was built by our team also. India is good with software. वो मचा रहा है software. But hardware जब आता है ना, तो you see no product in India which is serving this good hardware like Dyson is doing in UK. पर लोग बैठे हैं इंडिया में जो कर सकते हैं. It is just के connect नहीं हो रहे. Hyperlab has been to Shark Tank. Shark Tank के बाद हमें मारुति में से एक ऑफर आया था. Our LinkedIn was flooded. 30,000 messages. 30,000 messages. ये कैसे हुआ मतलब? लोग ऐसे भर के आ गए थे वेबसाइट पे. ट्रैफिक वाज अराउंड 5-10 लाख एट अ पॉइंट. Like what do you think? 3.5 साल आपने दे दिया है. आपको क्या लगता है कि is it possible? द थिंग इज कि Welcome back to the Awesome Podcast, and today I have none other than Hitat, the founder and CEO of Hyperlabs. Hello. हेलो, हाउ आर यू? I'm doing good. How are you, Hitat? ब्यूटीफुल. Awesome. So, I just wanted to start the podcast. Basically, सब लोग कैसे start करते हैं कि आप क्या करते हो, आपने Hyperlabs कैसे found किया, ये सब चीजें हैं. But I would like to ask that कि आपको जो idea आया, a cat playing around, and you got an idea to create a product out of it. Can you please give an explanation of कि ये कैसे हुआ मतलब? The thing is कि cat playing around was a story which was built by our team also. So that is not the start of the product. Oh. We actually started with कि sports के market में जाना है. And what we saw is a gap of practicing reflex and agility. Got it. Second is because we were into gyms, all the team members have analyzed gym ka space. They understood that Zumba space is something which is always unoccupied. Right. तो उसको utilize कैसे कर सकते हैं? Because Zumba का investment is the biggest investment of gym where no equipments are there. That is a space का utilization that you have to do. Got it. So how to make sure that you practice your reflexes, agility, and also utilize the space that you have already in the fitness ka industry. So that's when we started with Hyperlab. And CAT का idea was once we understood कि we are going to make this product, उसके बाद वो references मिलना चालू हुए थे. Okay, so you built out a story around it कि इससे पूरा idea. That was a story. Awesome, yeah. So out of curiosity, कि why did you name the product as Helios. exactly? So the product is going to be always in the center. It goes 360 around the field. So it becomes the center point where it acts as a sun. And sun के around जैसे planets घूमते, we are also moving around the product. So it is, Helios is basically sun. So other say. Talking about your journey, like you started way early in your 20s, right? So can you just tell me like आपने क्या पढ़ाई करी है? I know that कि आपने industrial designing करी है, and then you went into this. So can you just give a background of? So I started with designing product design. Product design में भी दो field होते हैं. One is furniture, second is industrial designing. Industrial designing is basically hardcore product development. कि आप concept भी बनाओ, आप उसको form भी दो, उसके बाद manufacturing भी हो. So that is something which I have as a background. You learned लेकिन आपने बोला जैसे मैंने शार्क टैंक का आपका एपिसोड देखा था, तो वहां पे मैंने देखा था कि you have already worked on previous प्रोडक्ट्स, मतलब आपने इससे पहले भी कुछ इन्वेंट किया हुआ है. तो ये सॉर्ट ऑफ आपने भले पढ़ाई करी है एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, बट आई कैन कॉल यू एन इन्वेंटर कि आप कुछ नया इनोवेशंस पे ज्यादा फोकस करते. तो अब इससे पहले आपने क्या बनाया था? वो जब कॉलेज स्टार्ट हुआ ना, तो एक चुल था कि हर बार कुछ बनाना है तो वो तोड़ू फोड़ू नया ही होना चाहिए. एंड सेकेंडली उसका पेटेंट मिलना चाहिए. मैं पेटेंट का भूखा था पहले. तो कोई भी चीज जो डेवलप हो रही थी उसमें पहले पेटेंट देखता था कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता. राइट. तो फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी मेड वाज बेसिकली कैसे एक टैप जो अपने घर पे होता है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसिंग दैट थिंग. तो जो फॉसेट्स होते हैं उसके ऊपर एक प्लगइन लग जाता था एंड दैट यूज्ड टू मेक द होल टैप ऑटोमेटिक. So that was the initial
start of the journey of industrial design. But did you capitalize on that product? कि So the बस thing is कि capitalize करने का try किया था, but R&D तब एक मैकेनिकल होता है, एक अपना इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एक फॉर्मवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई टीम मेंबर नहीं था. एंड दैट वाज आई गेस द फर्स्ट लर्निंग आल्सो फ्रॉम दैट स्टार्टअप के without good team members you are not going to make That's absolutely right. technology at least. So like, how long did it take for you to develop Helios? I think it is now around 3.5 years. 3.5 years Yeah. in just development R&D of making this product. So the thing is that initially making the product was something which was hard because all the components that you get are not from India. We wanted to make sure कि India में ही बने. Right. तो वो एक तो कॉस्ट रिड्यूस करना था बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट विथ इंडियन मार्केट एंड सेकंड इज वी वांट टू मेक इन इंडिया. Right. तो उसके लिए जो करना पड़ा वो दैट वाज बेसिकली कटिंग डाउन इन द टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग श्योर कि व्हाट एग्जैक्टली एथलीट नीड उतना ही प्रोवाइड करना है so that we can deliver our very robust product to them. So during these 3.5 years of making the product, like what were the challenges? मतलब आपने सोच तो लिया कि मेरे को बाहर से नहीं लाना है और इंडिया में ही बनाना है, वो भी गुजरात में बनाना है, तो क्या challenges face किया आपने इसमें? I think the biggest challenge was to make PV. मतलब we started with a PVC का prototype. So the biggest challenge at that point of time was कि ये जो product है ना उसको prove करना था कि ये काम कर सकता है. Because all the people with whom we were going interviewing कि ये product कैसा लग रहा है, उनमें सिर्फ question एक ही था कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा. And वो question हमें भी था कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा because all the identification, वो system develop करना उसके around, that was the biggest challenge. तो वो एक वैलिडेशन मिलना ना कि ये प्रोडक्ट काम का है, दैट वाज आई गेस द हार्डेस्ट पार्ट था कि हाँ कि ये चल रहा है और ये काम का है. उसके बाद डेवलपमेंट वाज समथिंग व्हिच वाज टेकन केयर बाय द टीम, ऑल द पीपल अराउंड अस एंड द मेंटर्स, बट हार्डेस्ट पार्ट वाज टू मेक श्योर कि ये प्रोडक्ट काम का है, उतना वैलिडेट करना. मतलब इन शॉर्ट आपका वैलिडेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. एंड देन बिकॉज वो वैलिडेशन के बाद ही शायद आपने उसके पेटेंट के लिए और ये सब के लिए आपने अप्लाई करके हाँ, एंड दैट इज समथिंग कि एक बार अगर पता चले कि ये काम का है तो उसके बाद वी कैन इन्वेस्ट मोर ऑन दैट. तो जो आगे के स्टार्टिंग के R&D वाले फेज था ना, दैट वाज आई गेस द हार्डेस्ट. उसके बाद तो स्मूथ जर्नी. सो लाइक आपने लाइक हीलियोस को कोई अनकन्वेंशनल या अनयूजुअल जगह पे टेस्ट किया अदर देन जस्ट स्पोर्ट्स के अलावा? ऐसा यार शार्क टैंक के बाद हमें मारुति में से एक ऑफर आया था. मारुति कार मैन्युफैक्चर. अच्छा मारुति सुजुकी. ओके. और वो लोग को अपने वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते राइट. सो दे हैव टू टेस्ट एट एवरी पॉइंट कि ये चेक हुआ है कि नहीं हुआ. तो उनकी ऐसे असेंबली लाइन आती है, तो दे वांटेड टू डिप्लॉय हीलियोस ओवर देयर. और हीलियोस प्रोजेक्ट कर रहा है कि आपको ये चेक करना है. इफ यू टैप ऑन दैट तो उसके बाद वो दूसरा पॉइंट बोलता है. तो वो कोई जो असेंबली लाइन पे जो इंसान है वो भूल ना जाए कि ये पॉइंट्स चेक करने हैं, इसलिए दे वांटेड टू डिप्लॉय हीलियोस ओवर. एंड उसका आउटकम ना क्या निकला? मतलब हमने एक टेस्ट किया, बट आफ्टर दैट वी एज अ टीम रियलाइज के this is a market which is very huge, but we never started with the intent of serving to this market. There could be a better technology which can suit this requirement. This should be going in sports and fitness only, and that was test किया आपने, लेकिन you said कि नहीं, deployed also. हाँ, but the thing is that we don't want कि ये forcefully fit हो. उसके अलावा cameras है जो ये सब चीजें कर सकते. So Helios was just an add-on, which was not necessary. That is what we thought. Like, do you have any sort of sports team or any main players using Helios अभी? We are making, मतलब athletes हमारे पास इतने नहीं है. We are making a team of sports scientists. Sports scientists. Can you just explain what exactly is a sports scientist? When we get the data, it is basically time, distance, direction, ये सब. अभी उसमें से क्या क्या निकल सकता है, वो एक चीज जाएगा जो एप्लीकेशन में जाएगा. टू डेवलप ऑल ऑफ दैट यू नीड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हु कैन से कि अगर मेरा स्पीड इधर से इधर ड्रॉप हुआ है तो दैट इज बिकॉज ऑफ फटीग, दैट इज बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ स्टैमिना. तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना, दैट इज द एल्गोरिथम्स व्हिच स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हेल्प अस टू मेक. Secondly, now the device is mature enough to go out in the market, but
here the problem is of awareness कि ये डिवाइस को यूज कैसे करें because this is very new device. So sports scientist is someone who is responsible for making the drills and explaining to people and other coaches that how this drill is benefiting them, their clients and इन शॉर्ट ट्रेनर मतलब उनका कोच नहीं है बट कोच वो अवेयरनेस स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं। एक अवेयरनेस है और एक एल्गोरिथम्स है, दोनों वो लोग हेल्प कर रहे हैं। So दोनों वो लोग हेल्प करेंगे। सो फटीग कैलकुलेशन अभी थोड़े टाइम में आएगा हीलियोस में कि आप 10 बार ड्रिल कर रहे हो तो वो बोलेगा कि 7 के बाद आपने रिड्यूस किया स्पीड एंड दिस इज द रीजन। उसके बाद वी आर फीडिंग द डेटा टू एलएलएम आल्सो। ओके तो एलएलएम आपको बोलेगा कि आफ्टर दिस मेनी मंथ्स आई थिंक आप इधर पहुंचने चाहिए, ये आपका ट्रेनिंग रूटीन रहेगा। तो सो ये सारी चीजें ये डिवाइस में होने वाली है। मैंने वो एपिसोड शार्क टैंक के एपिसोड में एक और चीज सुना था कि फॉर एग्जांपल सानिया मिर्जा या किसी का मतलब किसी का भी आप वर्कआउट रूटीन लेके आप फीड करोगे इसको हीलियोस को तो वो आपको उसके हिसाब से ट्रेन करेगा। तो ट्रेन नहीं करेगा, वो आपको उसके साथ कंपैरिजन दिखाएगा। सो लेट्स से टुडे यू आर डूइंग अ ड्रिल ऑन दिस, तो आपका सारा स्पीड, आपका सारा एजिलिटी, रिफ्लेक्स इसके अंदर चला गया। राइट। तो अभी वो डेटा को मोनेटाइज कर सकते हैं, दैट इज अ ऑप्शन। सो इफ समवन इज गिविंग अस परमिशन कि दिस इज माय स्कोर, आई वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड एंड लेट पीपल कंपेयर ऑन द डिवाइस। तो आज अगर उसेन बोल्ट कर रहा है उस पे, तो उसका अपने को स्पीड वीड पता है। अगर वो पॉइंट पे आप नहीं पहुंच रहे तो वो आपको गैप देगा कि उसेन इज डूइंग इन दिस मच स्पीड, दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर एजिलिटी एंड दिस इज योर रिफ्लेक्स। क्योंकि कैसा है कि आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल नेशनल लेवल पहले तो, और अगर एनबीए भी देखे या कुछ भी देखते हैं, कोई भी स्पोर्ट देखते हैं, तो हम लोग मैच से पहले कॉम्पिटिटिव टीम के पुराने मैचेस बैठ के हम लोग देखते हैं। हाँ, कोच हमको बोलते हैं बैठ के देखो क्या है उनका, एग्जैक्टली उनका किस तरीके से वो लोग डिफेंड कर रहे हैं, किस तरीके से ड्रिल्स हैं उनके, क्या है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं कि अच्छा ये बंदे का ये, जैसे मैं आल्सो ट्रेनिंग और मसल मेमोरी। एग्जैक्टली। सो विथ हीलियोस यू मीन टू से कि अगर मैं पूरा डेटा दूं तो it can give you the exact way how you have to. Right. Also, right now we are making a software in which you can feed the video. तो साइना का वीडियो वो लेगा, वो देखेगा कि वो कहाँ कहाँ ड्रॉप्स दे रही है, कहाँ कहाँ वो स्मैशेस दे रही है, और कितने इंटरवल पे दे रही है। उस हिसाब से वो आपको भी अपनी मसल मेमोरी ट्रेन करने का ऑप्शन देगा। एंड दैट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट दैट इज अगेन इनोवेशन टेक्स टाइम। लेकिन जो भी कर रहे हैं मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल थॉट प्रोसेस इज गोइंग इन। यस, ये काफी बेनिफिट होगा यार। मतलब जैसे हम लोग घंटे घंटे बैठ के मैच देख रहे, फिर उसके हिसाब से नोट्स लिख रहे, एंड देन प्रैक्टिस में फिर वो प्रैक्टिस करते। Like I'll ask you to be that guy in the other team. वो पोर्ट्रे करता है, मैं फिर उसके हिसाब से करता था। लेकिन अब with the device, everybody like all my players can. Good part is that you will be able to see the data also. Exactly. मेरा खुद का ट्रेनिंग डेटा पता चल जाएगा कितना आप उसके क्लोज थे। Okay, just tell me कि आपका like what was the usual feedbacks तो सब लोग देते हैं, आपको एक कोई अनयूजुअल फीडबैक मिला है? सब पॉजिटिव ही नहीं मिला होगा, कभी कुछ अनयूजुअल फीडबैक मिला हीलियोस के बारे में? हमको बहुत प्रो एथलीट्स जिसके साथ हीलियोस यूज करते ना, वो लोग को डिवाइस स्लो लग रहा है। अच्छा, मतलब वो लोग डिवाइस से भी फास्ट है। सो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव अंडरस्टूड आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट। आफ्टर शिपिंग 300 यूनिट्स वी हैव अंडरस्टूड कि बहुत जो नेक्स्ट लेवल रिफ्लेक्सेस जिसके हैं वो लोग डिवाइस से फास्ट निकल रहे हैं। तो पॉइंट पहुंचे उनके पहले उनका हाथ उधर होता है। क्या बात करो। हाँ, तो ऐसे भी लोग हैं और उनको केटर करने के लिए और एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल में जा रहा है। नहीं, इसको अपने अपग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेड हो सकता है बट इट हैज इट्स मैकेनिकल लिमिटेशंस कि मैं 25 किलोमीटर की स्पीड पे ही चेंज कर सकता हूँ। नाउ पीपल आर मूविंग अराउंड 30 किलोमीटर का स्पीड। ओके, सो टू मैच दैट उसके अंदर हार्डवेयर चेंजेस हो गए। दैट इज समथिंग व्हिच वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ आल्सो। सो विदाउट लाइक कि ये आपको आइडिया आपने बता दिया कि आपको आया कि यू वांटेड टू डू दिस, बट लाइक इज दिस या लाइक सॉर्ट ऑफ पैशन, मतलब ये पैशन प्रोजेक्ट बोल सकते हैं इसको? स्पोर्ट्स मतलब इफ यू सी नो व्हाटएवर आई थिंक यू नेम द स्पोर्ट्स आई कैन प्ले दैट। हाँ, अच्छा, यू बट दैट इज बिफोर द इंजरी। ओके, लाइक लिगामेंट क्या होगा? बास्केटबॉल होंगे, बास्केटबॉल होने में वो लगा हाइट और इसके से लगा कि बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं मोस्टली। यस, तो द थिंग इज कि आई यूज्ड टू प्ले ऑल द स्पोर्ट्स। नाउ द थिंग इज कि सारे स्पोर्ट्स में एक चीज तो था, रिफ्लेक्स एजिलिटी। वो कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, वो एक मार्केट गैप दिख गया था।
टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच इंटरेस्ट मी द मोस्ट। ओके, कि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा ना तो वो पहले आएगा घर पे और वो खुलेगा, उसके अंदर देखा जाएगा कि क्या कैसे चीज काम कर रहा है। अभी एक ऐसे चुल मच गई थी कि अपना भी प्रोडक्ट ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको लोग काट के देखे कि अंदर ऐसा है तो क्या। तो वो सिर्फ चुल को मचाने के लिए स्पोर्ट्स टेक चालू किया था। एंड नाउ इट्स सॉर्ट ऑफ फुल टाइम, तो दिन रात सुबह वही यही कर रहे हैं। तो एक अपना अगर देखो ना, इंटरनेशनल मार्केट अभी देखो ना, एप्पल है, डाइसन करके कंपनी, डाइसन, यस, एंड दोज पीपल आर heads on R&D, मतलब इनोवेशन नेक्स्ट लेवल Wait. इनोवेशन। so I had an offer from Dyson initially when I was doing internship। तब ऐसा था कि अगर डाइसन कर सकता है यूके में बैठ के, चाइना जाए बिना, तो अभी अपने को भी इंडिया में ऐसा लाना है हार्डवेयर। इंडिया इज गुड विद सॉफ्टवेयर, वो मचा रहा है सॉफ्टवेयर। हाँ वो तो है ही। हाँ, बट हार्डवेयर जब आता है ना तो यू सी नो प्रोडक्ट इन इंडिया विच इज सर्विंग दिस गुड इन हार्डवेयर लाइक डाइसन इज डूइंग इन यूके। सो दैट इज व्हाट वाज के सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन इंडिया जैसा में थोड़ा। डाइसन जितना R&D अपन भी कर सकते हैं। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज ऐसे कॉन्सेप्टली इग्नाइटिंग दिमाग में आ रहा है कि वो कि करना अभी है। अपने को भी फाड़ना है। लाइक व्हाट डू यू थिंक, 3.5 साल आपने दे दिया है, आपको क्या लगता है कि इज इट पॉसिबल? यू ऑलरेडी डूइंग इट बट विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। क्या लगता है आने वाले 5 साल में व्हाट डू यू सी, लाइक इज इट पॉसिबल? आई थिंक इफ वी डू स्मार्टली एंड वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितना जरूरत है, उससे ज्यादा हम लोग फीचर्स नहीं डाल रहे, तो तो वो सारी चीजें इज पॉसिबल। इट इज वेरी मच पॉसिबल। द ओनली थिंग इज के अपने को अंडरस्टैंड करना है कि अभी अपने पास क्या लिमिटेशन है। राइट। अगर मोल्डिंग हमारा लिमिटेशन है तो उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, और लोग बैठे हैं इंडिया में जो कर सकते हैं। इट इज जस्ट के कनेक्ट नहीं हो रहे, और पता नहीं कि ये लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आईसी में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इंडिया में भी लोग आईसी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो कहाँ मिलेगा ना, वो नहीं पता चल रहा है। चाइना से इंपोर्ट करना भी बहुत इजी है, तो वो फटाफट इंडिया में कहाँ से होता है वो? हाँ, वो नहीं पता चल रहा है, और उसका क्वालिटी टेस्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। वो एक स्टैंडर्ड जो एक कंपनी होना चाहिए ना, जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट करके एक कंपनी है जो आईसीज बनाती है, वो इतनी स्टैंडर्ड है कि उसकी कोई भी चीज खरीदोगे अपने को फुल भरोसा होगा। इंडिया में अभी वो मिसिंग है कि एक ऐसी सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कुछ भी बनाए वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन अभी भी नहीं है। वो अभी नहीं है। लेकिन अभी देखा है तो कुछ फॉर एग्जांपल अभी इंडिया काफी कुछ चीजें एक्सपोर्ट्स तो कर रही है, लेकिन बस वो ये कि ब्रांड नहीं बना रहे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द ब्रांड, वो माल बेचने में लगे हुए हैं। यस, सो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो लोग इनोवेशंस को स्पॉन्सर करते हैं कॉलेजेस में जाके, कि आप हमारी कोई भी चीज खरीदो, आप कुछ भी बनाओ, हम लोग आपको सब फ्री देंगे। तो वो तभी से ब्रांड बनना चालू हो जाता जब मैं स्टूडेंट हूँ। तो आज अगर मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा और मैं अभी मेरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मेरे को पहला दिमाग में आएगा कि मेरे को टीआई का ही चीज लेना है। सही बात है। तो वो लोग पहले से कर रहे हैं। अभी इंडिया बनेगा 5-6 साल में बन जाएगा, उसमें माना नहीं, बट द थिंग इज दैट वी शुड नो आवर लिमिटेशंस, और उसके अराउंड खेलना है, तो फिर कैसे करना है। टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड प्रोडक्ट, वेयर डू यू सी कि हीलियोस सबसे ज्यादा कौन से स्पोर्ट में काम आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जिम वेयर बेचते हैं, तो जिम के अंदर वेयर डू यू सी, लाइक जुम्बा है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू वेट लिफ्टिंग, ठीक है, प्रॉपर वेट लिफ्टिंग करता हूं मैं, पावर लिफ्टिंग नहीं करता, ना जुम्बा करता हूँ, HIIT नहीं करता, हाँ ट्रेडमिल कार्डियो करते। तो यहाँ पे मेरे लिए ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा? When we started with बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट्स। बैडमिंटन, कि बैडमिंटन में एक तो हम जो रेंज में खेल रहे हैं, वो रेंज में बैडमिंटन सूट हो रहा था। इनिशियली द डिवाइस वाज एबल टू प्रोजेक्ट 3 मीटर्स ओनली, 3 मीटर से अभी कितना? अभी 6 मीटर जाता है। 6 मीटर तक जाता है। 6 मीटर, सो इट कवर्स 12 मीटर का एरिया। 12 मीटर, इनिशियली इट यूज्ड टू कवर 6 मीटर का टोटल एरिया। मतलब ये एज अ राउंड पूरा वो कर सकता है। सो इनिशियली वी स्टार्टेड विद दैट लिमिटेशन कि 3 मीटर ही कर पा रहे, 6 मीटर अपना कवरेज होगा, तो बैडमिंटन इज द बेस्ट स्पोर्ट दैट वी कैन सूट। बट एज एंड व्हेन वी प्रोग्रेस्ड, वी अंडरस्टूड कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर आवर स्पोर्ट, इट इज स्पोर्ट्स एग्नोस्टिक प्रोडक्ट। तो जैसे अपना वेइंग स्केल है, वो अपने को कैसे कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी फिटनेस में वो वेइंग स्केल चलेगा ही, कि मेरे को चाहिए कि मेरा वेट कितना है, ये आपको मेजर करके देगा कि आपका कोई भी स्पोर्ट हो, आपका रिफ्लेक्स कितना है, आपका एजिलिटी कितना है, आपका फटीग लेवल क्या है, आपका स्टैमिना कितना है। तो मेनली आप बोल रहे हो कि इंप्रूव करेगा फंक्शनैलिटी है, एजिलिटी और स्ट्रेंथ। मतलब दिस मोर ऑन द साइड ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस। मतलब लाइक बॉडी जो वेट उठा रहे हैं उसके लिए तो वो काम ये नहीं है, परफॉर्मेंस ड्रिवन स्पोर्ट्स। हाँ,
जैसे हाँ बास्केटबॉल से लेके सारे भी sport. बैडमिंटन हो गया जिसमें ड्रिल्स करना पड़ेगा, स्टैमिना चाहिए, एजिलिटी चाहिए, Secondly, what we रिफ्लेक्स have चाहिए। understood is after doing all the test VO2 max और ये सारे टेस्ट करने के बाद we have understood कि in gyms if you are doing treadmill तो वो treadmill आपका अगर 1% it is doing 100% calorie burn तो this can do 150% calorie burn because what happens is अगर आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हो you are going to burn less fuel. That's right. Fuel is calorie over here. सही बात है। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो यू आर कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग एक्सिलरेटिंग तो वो ज्यादा फ्यूल बर्न करता है सो दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली गिव्स यू पॉइंट यू गो ब्रेक ओवर देयर राइट तो और कैलोरी बर्न होगा उसके बाद अगेन यू हैव टू पिक अप योर बॉडी और उधर दूसरे पॉइंट पे जाना है सो दैट इज बेसिकली बर्निंग मोर कैलोरी इन लेस टाइम एंड गिविंग यू रॉबस्ट डेटा जो आपके जैसे पास आप बास्केटबॉल खेलते थे तो आपको ड्रिल्स तो पता ही होगा। हाँ सेम है, अलग अलग जगह पे वी कैप करके वी हैव टू एंड इफ यू सी वो आपका हार्ट रेट बहुत जल्दी पीक बहुत ज्यादा किक करेगा। यस राइट। ट्रेडमिल नहीं करता ट्रेडमिल क्योंकि वो आप एक इनर्शिया में चले गए हो वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा दैट इज ऑल्सो बर्निंग योर कैलोरी दैट इज बिल्डिंग योर स्टैमिना हियर यू आर बिल्डिंग व्हाट योर कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ cardiovascular and I think that is more important. yeah Cardiovascular strength is more important. Now talking about the Shark Tank, you have been to Shark Tank, मतलब Hyperlab has been to Shark Tank and we have all seen the episode. So how was the experience? I think Shark Tank was very overwhelming मतलब टिल नाउ पीपल नेवर न्यू कि रिफ्लेक्स एजिलिटी कुछ होता है जिसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये हमारे कॉमन लोगों को स्पोर्ट्स को तो सबको पता ही है, सबको पता है कॉमन लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल रहा है तो लोग ऐसे भर के आ गए थे वेबसाइट पे ट्रैफिक वाज अराउंड 5-10 लाख एट अ पॉइंट और हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे सबको आंसर करे इतने सारे क्वेरीज आ रहे कि हमें भी डिवाइस चाहिए हमें एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी नहीं किया पता है जस्ट पिक आपने बोला था कि मार्च आई थिंक ये मार्च में आपने बोला था कि विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इस तरीके से उसके बाद तो बहुत टाइम हो गया उसके बाद और मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रॉब्लम्स है वो तो आने वाला ही है मैन्युफैक्चरिंग इज लाइक कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला रहता है बट आप तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वही कि यूके नहीं जाना चाइना नहीं जाना इंडिया में सब करना है तो आसान नहीं है with limited funds the same that is the so Shark Tank के बाद एक चीज तो आया कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा मिली एंड दूसरा कि people were very proud of Hyperlab doing things R&D something in India. Yes. Right. And they were very happy that some hardware company is coming up जो कुछ नया कर रही हो with software and everything. So that was all the comments that we also had. like आपके Instagram पे भी काफी response आया होगा इसके. Insta was we don't have very much active Insta right now. Got it. Our LinkedIn was flooded. 30,000 messages. 30,000 messages. That was good. What about the order? Like pre-orders आए उसके बाद? We had around 500 pre-orders at that point of time and 35,000 का price. 35,000 के price में 500 pre-orders from the episode के time पे. हाँ. Which is a very good thing. मतलब it was very much overwhelming. Okay, इतना आगे. And you got an investment from Aman Gupta. Like वो valuation तो आपका उन्होंने डबल कर दिया था. मतलब वो आज सुबह में I was ड्राइविंग यार तो मैंने वापस एक बार पूरा एपिसोड सुन रहा था कि यार डिटेल्स देखते तो लड़ रहे सब अंदर 10 का 25 कर रहे यार ये दैट वाज सो गुड एंड अभी आप इन्वेस्टमेंट के बाद लाइक इज देयर एनी लाइक हेल्प है उनके एंड से दे टोल्ड कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही विल हेल्प बिकॉज़ ही हैज अ फैक्ट्री सो अमन हैज गिवन एक्सेस टू ऑल हिज टीम मेंबर्स सप्लाई चेन कैसे हैंडल करना है अच्छा फिर अगर चाइना से थोड़े भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं जैसे लेजर इंडिया में बनता ही नहीं दैट्स राइट तो लेजर इज अ कंपोनेंट व्हिच वी सोर्स फ्रॉम चाइना सो हाउ टू गेट अ क्वालिटी ऑफ लेजर फ्रॉम देयर ही हैज गिवन अस एक्सेस टू एवरीवन एंड यू गाइस आर यूटिलाइजिंग इट yeah so tell me like what was the like one of the funniest moment in while on the episode of Shark Tank? I think it was मतलब to be very frank जब हम लोग डेमो स्टार्ट किए तो डिवाइस हमने रखा
अभी शार्क टैंक का जो सेट है उधर नेटवर्क नहीं आता, अच्छा। बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। और हमारी एप्लीकेशन नेटवर्क के बिना क्लाउड, सारी चीजें क्लाउड पे, वो चलती ही नहीं। तो हमने लगाया था, कुछ हो नहीं रहा था पीछे स्क्रीन पे, सब लोग की फटी पड़ी थी कि शार्क टैंक पे आगे स्क्रीन ऐसे लोड ही हो रही है, लोड ही हो रही है। उसके पहले बाहर सारे टेस्ट किए थे, सब चल रहा था, तो ये फटी पड़ी थी। तो पीछे चाइल और हर्षित हैंडल कर रहे थे वो कि चालू हो जाए, कहीं से मेटा जाए। और वो टाइम मैं आगे था क्योंकि मैं डिवाइस को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला था, तो मैं उनके आगे जाके खड़ा हो गया था। अभी इधर बहुत क्लोज थे और उनको मस्ती सूझ रही थी अब कि अभी इसकी खींचते हैं। तो वो चालू किया कि तू क्या स्पोर्ट्स टेक बनाएगा, तू ही इतना बड़ा और मोटा, मोटा वाज नॉट द वर्ड बट वो बोल रहे थे। हाँ मैंने देखा था, वो बोले, वो कौन था, अनुपम मित्तल ने बोला था ना कि तुम तीनों को देख के तो लग नहीं रहा कि तुम कभी आज तक जिम गए हो। हाँ, और हमें मजा तब आया क्योंकि हम तीनों को पता है कि हम लोग गेंडे जैसे हैं। तो हम लोग ने ये सब चीजें सोच के रखा था कि ये कोई ना कोई तो बोलने ही वाला है, प्रिपेयर्ड है। हाँ, कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पे आने ही वाले कि तू पहले स्पोर्ट्स टेक यूज कर, बाद में ये सब पहले भी आए जब ये वही वाला हाल है, पता है, जिम में जाते ट्रेनर, हाँ, वो ज्ञान देता है कि भाई नहीं डंबल ये ऐसा कर, तू पहले बॉडी बना, उसके बाद हमको ज्ञान वाला सीन है। तो ये हमको पता ही था कि आने वाला है, तो उसके लिए वो आंसर भी ऐसे दिल से प्रिपेयर था। और ऐसा था कि मैं बोल दूं, पर एक बार सिर्फ परमिशन चाहिए पूछ लो क्या, हाँ, कि कुछ बोल दूं, आपको गंदा ना लगे, बुरा ना लगे। मेरे को सबसे फनी मोमेंट कौन सा लगा पता है, कि जब आपने अमित को बुलाया, बोले करो, जो बोल रहे सब बोल कर रहे हैं, करो एक बार। और उसमें अमन बोलता है कि ये मशीन को ऑन ही रख, इसको दौड़ाए जा, दौड़ाए जा, क्योंकि वो लोग मतलब सेट पे बहुत फन करते हैं और फुल टाइम आउट लेते हैं, मस्ती वस्ती करके चिल मार के आते हैं वापस। तो वो जैसे उसको भगाया ना, उसको पसीना पसीना, हाँ मैं देखा। और वो तब, क्योंकि वो इसमें एक टाइम आउट करके मोड है, वो अर्जेंसी क्रिएट करता है, तो जैसे उसको पॉइंट पे टैप करता है ना, उसको होता है कि नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ, और वो बीप 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 कर रहा है, तो वो अपना 100% दे चुका था। तो पसीना टप टप कर रहा है, मेकअप निकल रहा है और बोल ही नहीं पा रहा है। तो सब लोग को इतना मजा आ गया था कि भाई अब ये शांत रहेगा। बट अमित इज ब्यूटी है ना, हाँ, वो सीधा पकड़ता है कि कैसे कौन सी चीज सही हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। मैं वो अमित कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अश्नीर ग्रूवर जैसा लगता है, थोड़ा उसका दिमाग सॉलिड है, मतलब वो छोटी छोटी चीजों पे कैसे प्रॉफिट मारते ना। लाइक डिड यू गेट एन एक्सेस टू ऑल द शार्क्स? मतलब नहीं, अमन ओनली अमन है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने लिया नहीं। आपने ऑल 5 शार्क डील क्यों नहीं किया आपने उसमें? ऐसा मेरे को एक ही से डील करना था, अमन ही था, क्लियर गए थे। मतलब 2 चॉइस थे, एक तो पीयूष था और एक अमन था। पीयूष तो उस टाइम उसमें था ही, और पीयूष वो टाइम शूट पे नहीं था, तो 2 ही चॉइस है। पीयूष भी वुड हैव बीन अ ग्रेट, मतलब क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा कर रहे हैं वो लोग, टेक में वो लोग बहुत ज्यादा। एंड अमन इज वेरी गुड विद मैन्युफैक्चरिंग। अभी उन्होंने यहाँ पे पूरा वही सेम माइंडसेट, चाइना में क्यों बनाए, यहाँ ही बनाएंगे वाला माइंडसेट है, और सेम आपका माइंडसेट वही है कि बाहर क्यों करें, हम यहीं करेंगे। वैसा है हाइपरलैब्स का, जैसे हमने एपिसोड में भी देखा था, तो एम्स टू सेल 3000, आपने किया था कि 3000 यूनिट्स आप सेल करेंगे बाय एंड ऑफ 2024। कितना हुआ है, क्या है? 3000 सेल हो जाएंगे, और उसके पहले उसको बनाना पड़ेगा। लेने वाले लोग हैं, बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब अभी चीजें अगर लीनियर हो जाए ना मैन्युफैक्चरिंग में, एज ए सेट के रिजेक्शन रेट हमारे साइड से बहुत हाई है। अगर हम 100 डिवाइस बना रहे हैं तो 30 तो रिजेक्ट हम कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये क्वालिटी ठीक नहीं है। वो एक एसओपी सेट हो जाएगा ना कि ये स्टैंडर्ड है, ऐसे ही सारी चीजें ऑपरेशनल होनी चाहिए, ऐसे ही असेंबली होनी चाहिए, तो चीजें धीरे धीरे लीनियर होने लगे। अगर वेंडर्स भी फिक्स हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी पहली बार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पहला बैच था, वो तो सबसे गंदा था, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि वेंडर कौन होगा। हमने 3 वेंडर से मंगाया, किस वेंडर का क्या सामान गंदा आ रहा है, क्या अच्छा आ रहा है, वो सब सॉर्ट करने में इतना सारा टाइम चला गया कि ये 4 महीने तो उधर ही खींच गए। सो ये सारी चीजें एक बार लीनियर होने लगेगी, so we'd be able to make and sell also. That is not an issue. You mean to say कि पहले आपको पूरा SOPs क्रिएट करना ही पड़ेंगे, and उसके बाद ही होगा, क्योंकि ये this is not a toy sort of thing. This is a equipment. उसके अंदर 9 सेंसर्स चलते हैं, वो खुद को कैलिब्रेट करता है,
वो देखता है कि मैं वो पोजीशन पे हूँ या नहीं हूँ, मैं अगर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट 4 मीटर्स है कि नहीं है, ये सारा सेंसर एक ले रहा है, वो डेटा दे रहा है ESP को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ये सारे सेंसर्स ट्यून नहीं हो गए अच्छे से तो वो बनाने में प्रॉब्लम आएगा, वो इतना अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे हर प्रोसेस को। तो आई थिंक हियर द मेजर थिंग इज कि कितना फटाफट अपन ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो रिपीटेबल हो। आज मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कल बना रहा हूँ, सेम बनना चालू हो जाएगा, तब मजा आएगा और वो SOP से हो जाएगा। दैट इज नॉट अ इशू। क्या लगता है लाइक ये टारगेट अचीव होने में कितना टाइम लगेगा आपको? आई थिंक ईयर, वो जो कमिट किया था वो, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव ऑलरेडी कनेक्टेड। अभी इट इज मोर ऑन द साइड ऑफ वी मैन्युफैक्चरिंग की डिस्ट्रीब्यूशन से सब लोग शिपिंग द प्रोडक्ट। और आपने बताया था कि इससे अपनी बात हो रही थी तो यू टोल्ड कि शिपिंग में भी प्रॉब्लम्स आए आपको, तो वो भी आपको प्रोडक्ट्स रिटर्न आए होंगे ना बनाने के लिए, या फिर सारे प्रोडक्ट्स जितने ऐसे शिपिंग वाले डैमेजेस थे ना वो रिटर्न आ गए। अभी हमने जैसे पहले हम लोग कार्डबोर्ड बॉक्स में कर रहे थे, तो अभी हम लोग ने केस ही चालू कर दिया। यू कैन गेट द प्रोडक्ट विद द केस, सो दैट ये सारे जो इश्यूज जो हमारे हाथ में नहीं है वो हमको सॉल्व भी ना करने पड़े। जैसे प्रोडक्ट दब के जा रहा है, कंप्रेस होके जा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि कैलिब्रेशन चला जाएगा उसका। तो ये सारे इश्यूज को हमको टैकल नहीं करना। आई थिंक इट इज दैट वी हैव लर्नड इट वेरी हार्ड वे, बट लॉजिस्टिक्स और आई गेस पैकेजिंग और ये सारी चीजें जो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है समथिंग विच वी हैव लर्न, कि उसमें डाल दो पैसा, उसमें करकसर नहीं कर। तो आपका टारगेट क्या है? लाइक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे पहले या फिर ऑनलाइन सेल करोगे? लाइक व्हाट इज द फोकस? ऑनलाइन आई गेस इज वेरी लेस, बिकॉज अभी क्या होगा कि प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, लोग टेस्ट करेंगे, वो जब तक यूज नहीं करेंगे ना तब तक उनको भरोसा नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट चलता है। भले मैं 100 इन्फ्लुएंसर्स को लगा दूंगा, बट जब तक दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली कि आपको डेमो चाहिए, उसका डेमो होगा, आपका पसीना ड्रिप होगा, आपको पता चलेगा क्या चलता है ये प्रोडक्ट, कैसे चलता है। एंड दैट इज हाउ आई थिंक ये पूरा डेमो दे के अभी सेल करना पड़े। एंड फॉर दैट रीजन आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स आर द वन who already have access to gyms, all the sports centers, और उनके लोग उधर जाते ही है। So there's a easy communication from their side कि हम लोग आपको डेमो देते हैं, आप सेल करो, खरीद लो। Got it. I also asked you one question कि Helios तो बना हुआ है, इसको आप बेटर तो कर रहे हो, but you're also doing a lot of other R&Ds back end में। Like what trend do you foresee in the fitness, the sports tech में अभी next trend आप क्या देख रहे हो? उसके हिसाब से कुछ बना रहे हो आप ऑलरेडी? Like I on that. I think right now the trend is initially in 2000 till 2020 it was more on the side of muscle building, pumping up. Right. लोगों को मसल्स चाहिए थे, बाइसेप्स चाहिए थे, वो एक ट्रेंड था कि जितने अच्छे फिटनेस वाले लोग हैं वो सभी। अभी ट्रेंड आ रहा है परफॉर्मेंस का, कि परफॉर्मेंस, मैं कितना फास्ट हूँ, मैं कितना अजाइल हूँ, मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ। ये सारे ट्रेंड्स आएंगे अब। योगा, पिलाटेस, ये सब यही करते हैं अभी सब। हाँ, जैसे सेलिब्रिटीज भी अगर देखोगे तो वो लोग अभी मसल बिल्डिंग नहीं, टोन्ड रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। राइट। उनको चाहिए कि उनके न्यूरॉन्स फास्ट काम करें, उनका पैर इधर तक पहुंचे। ऐसा नहीं चाहिए कि बल्क ही इधर हो कि इधर तक रुक जाए। सो सारे अभी पिलाटेस इसलिए चल रहा है इतना कि वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करता है, वो आपका स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, वो बहुत स्लो स्ट्रेंथ बिल्ड करता है बट बहुत टाइम तक रहता है। तो ये सारी अभी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जो सिर्फ पंपिंग अप से चेंज होके परफॉर्मेंस पे ज्यादा जाएंगे। सो सारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स, सारे परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स ही। आपके जो स्टेप्स हो रहे हैं, अगर मैं स्टेपिंग कर रहा हूँ एक जगह तो वो कितना फास्ट हो रहा है, उसका आपका पैर का कर्वेचर क्या है, वो सब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो वो नेक्स्ट पूरा हमारा लाइन इस पे ही रहेगा। क्या हितार्थ, ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फिटनेस एंड लाइफस्टाइल का ट्रेंड देखे तो आपने एक तो बताया कि इट इज बॉडी बिल्डिंग, पंपिंग मसल और शोबाजी से हटके परफॉर्मेंस बेस्ड जा रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन एंटी एजिंग ट्रेंड अब जो चल रहा है? ब्रायन जॉनसन जो कर रहा है, फिर अभी आपने आईवो जो भी रहा, बहुत सारे लोग हैं, सबको भी एंटी एज में जाना। तो एंटी एज में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज हेल्थ। I think it is your food habits. Yes, 100%. बाद में दूसरा, आप कैसे लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो। राइट। अगर स्ट्रेसफुल है तो बाल जड़ने ही जड़ने हैं यार, कोई रोक नहीं पाएगा, रिंकल्स आने ही। लेकिन स्ट्रेस के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल अगर हीलियोस यूज करते हैं अपने, कोई भी ऑन अ डेली बेसिस, सी
मी ऑल्सो रनिंग बिजनेस, इट्स स्ट्रेसफुल. यू डूइंग बिजनेस इज अगेन स्ट्रेसफुल ओनली. लेकिन मैं कोई स्पोर्ट खेलता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, तो स्ट्रेस रिलीज होता है. आपका भड़ास निकल जाता है. एग्जैक्टली. फ्रस्ट्रेशन क्लियर हो जाता है कि बॉस दिमाग, आराम से सो जाता हूँ. ऐसा नहीं कि मेरे को नींद का प्रॉब्लम है, 8 घंटे आराम से सोता हूँ, प्यारा नहीं, कुछ भी हो रहा हो अपने सो गए, जिम गए, स्ट्रेस रिलीज. तो एंटी एजिंग में भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का है पार्ट है, बहुत ज्यादा वो पार्ट लोग है. टेस्ट भी कितने करते हैं बिफोर दे स्टार्ट एनीथिंग. दे स्टार्ट विद VO2 टेस्ट. VO2 max. यस, आपका कार्डियोवैस्कुलर देखते हैं. यस. फिर ही वो लोग रूटीन्स और ये सब चालू करते हैं. तो आई थिंक द बिजनेस इज वेरी गुड एंड देयर आर ऑलरेडी पीपल हु डोंट वांट टू एज. आई थिंक इट इज विन ऑन बोथ द साइड. तो देयर इज नथिंग टू लाइक. क्योंकि अभी हम, मेरे को भी चस्का चढ़ा है थोड़ा, भले एज कम है लेकिन No, it is good only, यार. गुड ओनली ना, एंड ऑफ द इट्स अ गुड हैबिट. इफ यू आर नॉट हैविंग, यू आर नॉट गोइंग स्टेरॉइड्स, कुछ नहीं नहीं, है. हाँ. वो आप अपने रूटीन से कर पा रहे हो. आप थोड़े टेस्ट और बाद में थोड़ी चीजें से कर पा रहे हो. तो ट्रेंड आया, अब तो ट्रेंड है पूरा. इट्स अ ट्रेंड नाउ, एंटी एजिंग. वो लोग ने भी कितना डेवलपमेंट किया होगा. आई थिंक बहुत ज्यादा. वो स्टार्ट ही हुआ होगा 2000 में. दैट्स राइट. अब जाके ब्रायन जॉनसन हिमसेल्फ like puts in like $2 million every month on his health. दैट्स व्हाट. अभी मैं गार्मिन देखूं तो गार्मिन Garmin. कैन टेल मी कि मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है, ये क्या है. हाँ. बट दे हैव स्टार्टेड सिंस व्हाट 1994. That's right. उसके बाद वो लोग के पास इतना डेटा आया. उसके बाद वो लोग मशीन लर्न करके कह रहे हैं कि हाँ, इतना आपका स्ट्रेस है, इससे ये हो रहा है. तो दिस पीपल हैव ऑल्सो, आई थिंक दे Took an हैव inspiration. इन्वेस्टेड हाँ. thousands That's right. Thousands and crores. millions of dollars yes, into yes, it. Yes, yes, yes. and that is something which is good they are doing. अभी उसके पास कस्टमर बेस है, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन. So now, आपका कोई प्लान है कि like any celebrity endorsement to get the eyeballs or something like that? ऐसा कुछ है दिमाग में? मतलब are you planning any sort of marketing में सेलिब्रिटी लाओ या ऐसा इन्फ्लुएंसर लाओ, दो आपका डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं इतना श्योर नहीं हूँ. नहीं है. बट आई थिंक ऐसा मैंने देखा है कि ऑल द पीपल हु गेट इन्फ्लुएंस इज बिकॉज ऑफ सेलिब्रिटीज ओनली. सेकेंड इज इफ वी हैव सेलिब्रिटी तो हमारा कॉस्ट और ऊपर जाएगा. हाँ. इफ वी आर सेइंग दैट वी वांट टू बी स्पोर्ट्स टेक फॉर ऑल, तो वो फॉर ऑल बाद में नहीं रह पाएगा. That's right. वो लिमिटेड हो जाएगा क्योंकि वो हम लोग सेलिब्रिटी लाएंगे, उसका एक कॉस्ट होगा, मार्केटिंग कॉस्ट होगा, ये होगा, वो होगा. तो मेरा आइडिया, मतलब पर्सनली दिस इज मी स्पीकिंग, नॉट हाइपरलैब, बट आई वांट ब्रांड टू ग्रो वेरी ऑर्गेनिकली. लोगों को उसका फायदा दिखे, दे स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द प्रोडक्ट दे सेल. दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव एज आइडिया, बट इफ रिक्वायर्ड वी कैन डू सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. दैट इज नॉट केस. तो ऐसा सिनेरियो लेते कि आप आई वांट सेलिब्रिटी कोचेस. सेलिब्रिटी कोचेस. आई डोंट वांट सेलिब्रिटी हाँ. मतलब एक्टर एक्ट्रेस नहीं चाहिए. मेरे को ऐसे लोग चाहिए, those people who can understand why this product is useful and they can speak for it. Right. That is what I want, and I can pay them whatever they require. That is not the thing. They don't want the payment also. They want कि product इंडिया में है, चल रहा है, बहुत सही. सारे अभी जितने कोचेज है ना, all of those coaches are supportive in a sense कि इंडिया में हो रहा है, we will do it. सिनेरियो ऐसा ले सकते हैं कि आपने बोला सेलिब्रिटी कोचेस आप लेना चाहते हो, वैसे एक चांस मिला आपको कि आपको कोई सेलिब्रिटी चूज करने का मौका मिला, ठीक है, तो आप किसको चूज करोगे? मेरे को अक्षय कुमार. अक्षय कुमार एंटी, वो भी एंटी एजिंग किंग है बॉस, किंग है. हाँ, तो वो एक है. एंड आई थिंक ही वुड बी राइट वन टू एंडोर्स द प्रोडक्ट आल्सो, मुझे ऐसा लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज वेरी सपोर्टिव टू स्टार्टअप्स, एंड दूसरा आई वांट विराट. विराट कोहली, बस ये दो जन चाहिए. मतलब वो जो बॉलीवुड से जो मार्केट चलता है उसके लिए अक्षय, जो स्पोर्ट्स से चलता है उसके लिए विराट. ऐसा मेरे को चाहिए. पर दूसरा ये भी है मेरे को कि ये सब कुछ नहीं चाहिए मेरे को. सिर्फ आई वांट टू हैव दिस प्रोडक्ट एवरीवेयर, यूबिक्विटस. इंडिया में कोई भी अगर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में जाओ ना, ये प्रोडक्ट उधर पड़ा होना चाहिए, लोग इस पे प्रैक्टिस करने चाहिए. एंड आई वांट इट टू बी ऑन सब्सक्रिप्शन, कि आप ले जाओ सब्सक्रिप्शन पे चाहिए, 3,000 पे ले जाओ, जस्ट फॉर स्पोर्ट्स. जिम के लिए हम बेचेंगे क्योंकि वहां पे सब्सक्रिप्शन उधर पैसा है उनके पास. बट स्पोर्ट्स में इतना पैसा नहीं है जितना नहीं है यार, लोग नहीं है, देखते नहीं हैं. है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. अगर कोई कोच देखूं तो कोच की आप देखोगे ना, तो इनकम इतनी नहीं है कि वो 35,000 का प्रोडक्ट यूज करेगा. तो उनके लिए सब्सक्रिप्शन में यार दे आर डिपेंडेंट हेवीली ऑन गवर्नमेंट यार. दैट्स व्हाट. मैं साई के थ्रू खेलने जाता था पहले बास्केटबॉल में,
तो यार वो लाइक उनकी हालत, मतलब मैं सोच रहा हूँ इतने हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स हैं, कोचेस हैं, लेकिन उनके पास वही जो वहां पे जो Access ही नहीं सुबह गिन के वो इतने अंडे खा सकते हैं, वो इतना मैं खा ही रहा था, मैं तभी साई में गया था मैं बास्केटबॉल में। तो वही कि लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके पास, पैसा ही नहीं दे रहे गवर्नमेंट, जहां फोकस करना चाहिए वहां उतना दे ही नहीं रहे तो वैसा। मेरे को हर एक इंसान एज अ सेलिब्रिटी चाहिए जो अच्छा खेल रहा है ना, वो इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे आपने मेंशन किया कि आप इंडियन मार्केट और ये सारे स्पोर्ट्स में जाने वाले हो, एंड इसका प्राइस पॉइंट अगर देखा जाए तो थोड़ा हायर साइड पे है, तो एक बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे अगर किसी को चाहता है, तो आई यू प्लानिंग एनी सॉर्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स की लोअर कॉस्ट पे जा सके, ऐसा कुछ इंडियन मार्केट के हिसाब से? देख, स्पोर्ट्स के लिए आई वांट टू बी वेरी श्योर कि वी कैन डू सब्सक्रिप्शन, ले जाए प्रोडक्ट, वो लोग यूज करे, दे बिल्ड गुड एथलीट्स, दैट इज समथिंग व्हिच वी वांट। एक मार्केट है व्हिच इज बेसिकली दे वांट समथिंग न्यू। एक मार्केट है जिसको इसकी नीड है, एक मार्केट है जिसको कुछ नया चाहिए, और वो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम हैज पीक्ड। तो अगर मैं डिकैथलॉन में जा रहा हूँ तो मेरे को 15,000 मैं स्पेंड करने में इतना सोचता नहीं हूँ। सही बात। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15,000 डाल देंगे कि मेरे को ये नया दिखा है, इससे मेरा फिटनेस हो सकता है। अभी 35,000 इज अ ब्रैकेट वेयर पीपल हु अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बाय। 15,000 is a bracket which people want to enjoy buying something, or they want to show off, or they want to say कि हाँ मेरे को इस पे प्रैक्टिस करना है, I want to start training on this, मेरे को पता नहीं कैसे होगा but I want to start training on this। वो वाला एक बहुत बड़ा मार्केट है, and for that reason we are trying to reduce the cost of the product also। उसका रेंज रिड्यूस हो जाएगा, उसका डेटा एनालिसिस रिड्यूस हो जाएगा, but it would be enough to serve those people, those range of people। That will take time। That is, matlab, if we start, we can do it in 4-5 months. It is not thing. But here we want to focus first on this product. We want to sell it. We want to create a lot of data. कि हमें पता चले कि एथलीट का ये एवरेज आउट है। एंड नेक्स्ट व्हाट वी वांट टू डू इज कि आज अगर यू प्रैक्टिस ऑन द डिवाइस, द ऐप शुड से कि आउट ऑफ 1,000 पीपल प्रैक्टिसिंग ऑन द डिवाइस, यू आर एट दिस लेवल। अरे फोकस में कम्युनिटी वाला सिनेरियो आएगा ना, चाहिए मेरे को। उसमें अगर कोई कोच ऐप में ड्रिल बना रहा है तो दे कैन मेक इट लाइव ऑल्सो, कि यू डू दिस ड्रिल, यू कैन बाय दिस ड्रिल, यू कैन सेल, यू डू वॉट एवर विद द ड्रिल, बट our athlete can get access to any of the coach का drill. Athlete can get access. It's not just a hardware product, it's a hardware plus software है, दोनों है। Software is the sexiest key of this product. आज मेरे को ये बोल सकता है, Garmin cannot say कि आपका फ्रंटल स्पीड ये है, बैकवर्ड स्पीड ये है, लैटरल स्पीड ये है। दिस प्रोडक्ट कैन से कि आपका फ्रंटल इतना जाता है, लैटरल जब आप करते हो तो इतना स्पीड है, बैकवर्ड आपका स्पीड ये है, एंड वो आप कोई एथलीट के साथ कंपेयर कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स, उसके साथ आप कंपेयर कर दो तो आपको पता चलेगा कि बैडमिंटन खेलते हुए ये जो लेवल पे एथलीट्स है उनसे मैं इतना पीछे हूँ, मेरे को इतना इंप्रूव करना ही करना है। सो दैट इज द पावर ऑफ सॉफ्टवेयर दिस विथ दिस हार्डवेयर। बहुत ज्यादा काम की चीज है ये। मेरे को लग रहा है कि आगे जाते जाते नॉट ओनली, आई थिंक 4 year 5 years डाउन द लाइन, आई थिंक पीपल विल बाय दिस। अगर जिसके घर पे स्पेस हो या जगह हो, दे कैन बाय फॉर देम ऑल्सो ना, मतलब इंडिविजुअल घर पे भी कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज B2B, बट B2C करोगे तो कस्टमर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और B2C बहुत बड़ा और अच्छा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। अगर मेरा बच्चा है तो वो स्पोर्ट्स में जा रहा है, मेरे को उसको कुछ गिफ्ट करना है कि उसका मोबाइल से ध्यान हटके स्पोर्ट्स में और लगे। सही बात, मोबाइल जैसा कुछ दे दिया उसको कि आप खेलो, आप अपना डेटा देखो। राइट राइट राइट। एंड पीपल हैव बैंडविड्थ ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट्स अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ये सब है पीपल डू फॉर श्योर। अभी है B2C वी वांट टू गो। लेकिन पहले आपका फोकस वही है कि B2B, पहले मेरे को डेटा लाना है, मतलब आपका फोकस है कि वही सारे कोचेस आ जाए, सारे लोग आ जाए, पूरा डेटा उसके अंदर आ जाए, एंड देन यू विल गो टू B2C। इट शुड बी अ स्टैंडर्ड दैट इफ यू आर यूजिंग हाइपरलैब का हीलियोस देन यू शुड गेट दिस आउट ऑफ इट। वो एक स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए, उसके बाद आई थिंक B2C इज गुड टू गो। ऑलरेडी डेटा अंदर होगा सब लोग का, सॉफ्टवेयर में भी डेटा होगा ना ऑलरेडी, कि आप जैसे आपने बोला कि नहीं इसका वर्कआउट करना है, मेरे को ये लेवल पे जाना है, तो आई कैन डू देयर वर्कआउट। सिंपल एज दैट। प्री अप्रूव टेम्पलेट जैसा पूरा का पूरा रेडी रहेगा, सजेस्टेड होगा। यस यू कैन गो। और जो LLM हम बना रहे वो आपको बोल पाएगा कि आपका लेफ्ट
के साइड पे जो भी आपका मूवमेंट होता है वो बेकार है, आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो वो उसके लिए ड्रिल्स भी खुद बनाएगा फिर डिवाइस ऑटोमेटिकली, कि सारे पॉइंट्स लेफ्ट में हो गए और बाद में फेक पॉइंट राइट में होगा, ऐसा सब होने वाला है। इट इज गोइंग टू टेक टाइम बट दिस इज ऑल इन पाइपलाइन। तो लाइक डू यू थिंक यू विल बी एडिंग एआई, और एआई की जरूरत पड़ेगी इसमें? राइट नाउ इट इज एमएल, अभी मशीन लर्न कर रहा है। एआई विल बी इंट्रोड्यूस ओनली व्हेन वी हैव गुड इनफ डेटा, उसके बाद ही उसको, क्योंकि उसको भी डेटा देना पड़ेगा लर्न करने के लिए। और बाकी सारी चीजों में अभी जैसे मैक्सिमम अगर मैं स्पोर्ट्स की वॉच लूं तो उसके पास पहले से जब वो लोग ने स्टार्ट किया था दे हैव डेटा, तो दे कैन रन एआई ऑन दैट। राइट नाउ दिस डिवाइस इज वेरी न्यू एंड ऐसा डेटा अभी मिल नहीं रहा है जिसपे हम लोग एआई रन कर पाए। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न। एंड ऑफ द डे अगेन कमिंग बैक टू डेटा। डेटा चाहिए हर चीज के लिए अभी फिलहाल। तो प्राइस पॉइंट की बात करते हैं, लाइक कि प्राइस्ड, अगर शार्क टैंक में भी देखा तो अराउंड 35 वाज द प्राइस आपने डाला। 30 वाज द प्राइस। 30 वाज द प्राइस, देन यू इंक्रीज इट टू 50 नाउ। अगर मैंने वेबसाइट अभी रिसेंटली देखा था तो इट वाज अराउंड 50। लाइक कैन यू लाइक गिव द रीजन कि क्यों प्राइस हाइक क्यों किया आपने? मतलब जब हम शार्क टैंक में गए थे ना तब हमें मैन्युफैक्चरिंग का एम पता नहीं था। हमने सोचा कि हम जब खुद बनाते हैं तो इतने में बना पाते, तो we would be able to sell it in 30. But when we actually started manufacturing, we understood कि कितना जा रहा है और कितना पैसा फूके जा रहे हैं। We're burning it. क्योंकि सारी चीजें जैसी चाहिए वैसी नहीं बन रही। So there are multiple iterations which are going in that. So 30,000 Shark Tank के वक्त इसलिए रखा था because we claimed in Shark Tank का episode that we are going to sell it for 30. So that's why we incurred थोड़ा losses also. We reduced the price to 30 just to make sure कि हम लोग जो हमने commit किया है वो 1-2 महीने तक दे पाए। Then we again went back to the price that we actually had to. 50. वो सारा calculation लगा के 50 is the price that we can sell and 1-2 साल में profitable हो। और आपको लगता है कि आगे इन फ्यूचर इसका प्राइस 35 तक जा सकता है? जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो जा सकते हैं, बट नॉट दिस डिवाइस। 20-25 पे जाएगा। ओके। हाँ, एंड उसके यूज केस अलग होंगे कि सेम ही होगा, बट रेंज कम होगी और डेटा कम होगा। गॉट इट। सो लाइक अभी हाइपरलैब हैज पेटेंट, ठीक है, मतलब आपने टेक पेटेंट लिया है, मतलब ये ओवरऑल पूरा पेटेंटेड है इसका। तो कॉपीज या कोई कॉम्पिटिटर या थ्रेट ऐसा कभी फेस हुआ है मतलब आपको? कॉपीज बनने में टाइम है अभी, ये एक बार फेमस होगा तभी कॉपीज। इन कॉपीज वो ऐसे भी नहीं कर पाए ना, आपका पेटेंट है। हाँ, बट दे कैन डू कॉपी, देन यू हैव टू सू देम। हाँ, सो वो तो करना ही है। बिजनेस बेस्ट बिजनेस है कि आप हमारी तरफ से सेल करो, बाद में हम लोग पेटेंट लाके करते तो है वो। हाँ, कॉपी करेंगे, उनको पता नहीं होगा। करता है डायसन, फाड़ के करता है कि वो पहले बनाने देता है। हाँ। फिर जैसे ही उनका मार्केट कैप्चर होता है वो उनको पेटेंट दिखा देते हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज पावर ऑफ पेटेंट इन इंडिया, यूएस, एवरीवेयर। मतलब आप चाहते हो कि लोग बनाए, अब बनाओ, आप आराम से बनाओ, उसके बाद हम और दूसरा है कि ब्लेजपॉड इज अ वेरी फेमस प्रोडक्ट फॉर प्रैक्टिसिंग योर रिफ्लेक्स। ब्लेजपॉड, बेसबॉल, ब्लेजपॉड करके एक प्रोडक्ट है। ओके। वो लाइटनिंग पॉड्स है, वेरी गुड प्रोडक्ट। वो ऐसे 4 और 6 पॉड्स का सेट आता है। यू हैव टू प्लेस द पॉड्स, उसमें से वो कोई भी रैंडमली लाइट करेगा, यू हैव टू टैप इट, वो आपको टाइम देगा। द ओनली लिमिटेशन ऑफ द ब्लेज पॉड इज कि वो एक तो फिजिकल पॉइंट्स है, तो आपके पास 4 पॉड्स है तो आप 4 पॉइंट्स कर सकते हो। आपके पास 6 पॉड्स है तो 6 पॉइंट्स कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है कि उसको नहीं पता कि एक पॉड के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर मैंने 2 पॉड प्लेस किए तो वो 2 पॉड को नहीं पता कि इसके बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है, तो ये जब भाग रहा है तो इसका स्पीड ही हो रहा है। वो सिर्फ आपको टाइम देगा। अभी आज मेरे को यूएस में कंपेयर करना है, मेरे को एक यूएस का एथलीटर, एक अपने ने एक टेस्ट किया था, जापानीज बैडमिंटन प्लेयर और इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। तो जापानीज आर वेरी शॉर्ट इन हाइट and they are very agile. Indian players have mass, very much mass. So they are not that much repetitive. क्रिकेटर में तो नहीं है, क्रिकेटर एकदम सब सूखे, लेकिन उनमें पावर होता है। कितना पावर होता है बॉस। तो बैडमिंटन में अपना थोड़ा ऐसा है कि अपने जो प्लेयर्स है वो थोड़े हैवी है एंड उनके प्लेयर शॉर्ट और बहुत लाइट है।
तो वो लोग का रिफ्लेक्स अलग लेवल पे। अलग लेवल पे। सो आज एक जापान में ड्रिल कर रहा है और इंडिया में ड्रिल कर रहा है, अपने पास वो डेटा है, जापानीज प्लेयर इतना रिफ्लेक्टिव है क्योंकि वो सारे पॉइंट्स मशीन जापान में भी सेम दे रहा है, इंडिया में भी सेम दे रहा है, तो वो कंपेरेबल डेटा है। अभी ब्लेज स्पॉट में सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि मैंने इधर रखा है, मैंने टैप किया, कल को जाके मैं इधर रखूंगा तो वो ज्यादा टाइम लेने ही वाला है, तो उसके पास कोई डिस्टेंस का डायरेक्शन का पैरामीटर नहीं। बट दैट इज अ कंपनी विच स्टार्टेड इन 2014 आई गेस, एंड वेरी ओल्ड कंपनी। नाउ दे हैव एक्सपैंडेड ग्लोबली, सो एवरी ट्रेनर वुड नो ब्लेज स्पॉट क्योंकि वो इतने साल से मार्केट में है। मार्केट में ऑलरेडी। देखो वैसा ही होता है, टाइम यू हैव टू गिव टाइम ऑर्गेनिकली ग्रो करने में। जैसे कहावत है गुजराती, अगर गुजरात में रहते तुमको कहावत है कि बोले 1000 दिन देने पड़ते 3 साल टिकने का इसको। हाँ। और उसके बाद अगर एक बिजनेस को देखो तो इवन आई सी कि अभी फिलहाल कैसे भी मार्केट है, अभी कहते हैं रेस कर लेते, स्केल कर देते, एबिटा का कोई सर पैर नहीं है, बस स्केल चाहिए, मार्केट चाहिए, सबने किया, क्रेड ने किया या जो भी बहुत कम कंपनीज है जिसने उसमें फ्रूटफुली सक्सेस देखा। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेसमैन को देखते हैं अपने, जैसे अभी अहमदाबाद में देखो तो भी तुम वो जो रेस कर रहे हो उससे तो बहुत ऊपर बैठे हुए, अगर अदानी भी अहमदाबाद में बैठा हुआ है। बोला जाता है कि 10 साल लगते हैं एक बिजनेस को सेट होने 10 साल लगते हैं। 1000 दिन वैलिडेट करने में कि इफ यू सर्वाइव फॉर 1000 days you can do business. Yes. And if you do business for the next 10 years तो तुम धंधा वाले बना रहे हो वैसा होता है। डेफिनेटली। तो वो वही है कि उनके पास पहले से इतने एथलीट्स आ गए, सो आवर कंपटीशन इज नॉट ब्लेज स्पॉट्स बट उसका कंटेंट। वो Data. जितना कंटेंट बना के बैठा है ना, डेटा उसके पास सिर्फ टाइम का है, उसके पास और कुछ डेटा नहीं है, उसके पास कंटेंट बहुत सारा है और उसके पास लोग बहुत अच्छे हैं पहले से है ना। तो उसके पास कंपनी कहाँ की है? सॉरी मैं यूएस बेस्ड, यूएस बेस्ड, इजराइल मिलिट्री में वो लोग ऑपरेट करते हैं। ओ यार, तो ये प्रोडक्ट तो मिलिट्री अपने में जाएगा मिलिट्री में जाएगा, पुलिस में जाएगा, पुलिस की टेस्ट होती है उसमें जाएगा। उसका यूज केस इज एंडलेस एंडलेस यूज केस। अगर अभी आप एक एक चीज बोल रहे हो तो मेरा दिमाग सोच रहा है कि क्या कुछ कर सकते हैं। अभी इसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है फ्लोर पे, अभी ये सेम प्रोडक्ट इस पे वॉल पे भी कर सकता है और वॉल प्रैक्टिस भी फुल ऑन हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर शूटिंग करते हैं अपने, हाँ, तो ये जैसे उनको पॉइंट पे पॉइंट शूट करना रहता है। जैसे मेरा एक दोस्त है जो अभी नेशनल प्लेयर है, अभिनव के बाद मेरे को अभिनव यस बिंद्रा, यस अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग में है। हाँ, तो उस टाइप के स्पोर्ट्स में काम आएगा ये एक रेंज को पकड़ दो, मतलब वो एग्जैक्ट डॉट पे नहीं है, वो एक रेंज पे, क्योंकि जब आप पैर रखोगे या हाथ रखोगे वो डॉट पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो हमने सेंसर्स ऐसे ट्यून किए जो एक रेंज को देखते हैं, तो सीधा शूटिंग में काम नहीं आएगा, बट इट कैन बी कस्टमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड फॉर दैट। आपने वहां तक अभी सोचा ही नहीं है पहले तो, लेकिन ये जैसे आपने बोला कि मिलिट्री में, पुलिस में, जहाँ पे वहां पे ट्रेनिंग कराते हैं, वहां जो सब हार्ट स्ट्रोक पेशेंट्स है ना, हाँ, उनका हाथ उठना बंद हो जाता है। हाँ, वो लोग बाद में फिजियोथेरापी कराते हैं। अगर ये मेरे को डिवाइस एक डॉट दे रहा है, उसके बाद वो एक लेवल ऊपर जाएगा और एक लेवल ऊपर जाएगा। तो आज मैंने स्टार्ट किया अपना थेरेपी, मैंने 4 पॉइंट ही कर पाया। तो मेरे को पता है कि आज ट्यूसडे 4 पॉइंट्स, मैं 2 वीक के बाद ट्रेनिंग के बाद वापस आता हूँ 6 पॉइंट्स कर पाता हूँ। एज अ यूजर, एज अ पेशेंट मेरे को सीधा वैलिडेशन मिल रहा है कि हाँ, कल 6 था, आज 7 हो रहा है, परसों 8 होगा ही होगा। तो वो मेरे को भी एक मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ, हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। सो ये मतलब एंडलेस है बॉस। आपने शार्क टैंक में बोला था कि आपका ग्लोबल मार्केट आपका एक मेन फोकस है। आपको नहीं लगता कि वो ग्लोबल से पहले इंडिया आपके पास क्रैक करना है? वो इंडिया क्रैक हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। आप इधर बेचते थक जाओगे, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया इतना मस्त मार्केट है ना टेस्ट करने को प्रोडक्ट को। हम लोग अभी हर टाइप के लोग हैं, वही हम लोग अभी ग्लोबल इसलिए नहीं कर रहे कि इंडिया में पहले 500 पीस पहुंचाते हैं, सही बात है, लोग टेस्ट करे, तोड़े, समझे कहाँ टूट रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद ऐसा सॉलिड एक प्रोडक्ट बनेगा जो एक स्टैंडर्ड होगा कि हाँ ग्लोबली ये शिप करते हैं। लेकिन इधर मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट मार्केट इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे ना इंडियंस कैसा है कि हर रुपये को सही से घीस के यूज करते हैं। उसको अगर 35,000 मैंने डाला है तो वसूलेगा, वो पूरा वसूल करेगा, तो घीस डालेगा और कंप्लेंट लेके आएगा कि इसमें मैं कंप्लेंट लेके जाऊंगा, बताऊंगा कि ये नहीं है, वो नहीं हो रहा। आप मानोगे नहीं,
अभी हमारे यूजर है, वो 2 महीने से यूज कर रहे हैं। अभी उसने नया फोल्ड सैमसंग फोल्ड लिया। सैमसंग फोल्ड हो गया। अभी हमने सारे ऐप में टेस्ट किए, सब कुछ किया है, सब चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। हमारे पास फोल्ड नहीं है, तो फोल्ड पे कभी टेस्ट हुआ नहीं था। तो अभी वो 2 महीने के बाद एक नया फोन लेके आता है, वो बोलता है कि फोल्ड में यार आपका एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा। उसने बोला नहीं था कि वो फोल्ड पे नहीं हो रहा है, उसने बोला मेरे फोन में एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा है। अच्छा। हम सब सारा कोड धड़ 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 4 बार अपडेट्स मारे, 4 बार गूगल प्ले स्टोर पे चलाया, हमारे में चल रहा है, उसमें क्यों नहीं चल रहा है ऐसा, और 300 पीसीज में तो नहीं आ रहा है। सबको कॉल किए, सब में सब चल रहा है। फिर उसको वीडियो कॉल किया कि वीडियो कॉल पे देखते आप। वो स्क्रीन शेयर तब तक कर रहा था, हमने बोला कि वीडियो कॉल पे तू हुआ, और बाद में हमें दिखा कि कैसे हो रहा है, तो हम समझ भी पाए। और हम तब तक उसको एक नया डिवाइस भी सेंड कर चुके थे। अच्छा। कि अगर डिवाइस में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो हमारी गलती है, आप ले जाओ। उसके बाद वीडियो कॉल में पता चला कि वो ऐसे फोल्ड को अनफोल्ड करके वो यूज कर रहा है। जैसे ही सैमसंग फोल्ड अनफोल्ड होता है ना, वो टैबलेट मोड में जाता है, और हमारा ऐप फोन बेस्ड ऐप है, फोन बेस्ड तो वो ओवरलेज चला ही नहीं पाता। समझ गया। तो उसने उसको बोला कि डिवाइस को बंद करके आगे से यूज करना एक बार, और पूरा डिवाइस अच्छे से चल रहा है। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हम सोच भी नहीं पाते कि ऐसा कुछ हो सकता है कभी। सही बात। लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट पार्ट। लाइक नहीं, यू टोल्ड कि शार्क टैंक में बोला था कि यू टुक 1%, मतलब यू गेव 1% फॉर 25 lakhs। देन यू टोल्ड कि अगर इसको स्केल करना है तो मुझे और रेस करना पड़ेगा। आपने इसके बाद रेस किया? नहीं किया? मतलब जो आपके पास बैंक बैलेंस था और प्री ऑर्डर्स आ गए थे। सॉरी, प्री ऑर्डर्स आ गए थे। प्री ऑर्डर्स आ गए, उसमें आपका वो रहा, तो यू डिडंट। सो व्हाट्स योर लाइक, आपको भी रेस करना? मैन्युफैक्चरिंग वाज द मेजर थिंग फॉर व्हिच वी वांटेड टू रेस। इंजेक्शन मोल्डिंग इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। वो हमें पता नहीं था कि इतना बिल आएगा कभी। हमें लगा था ये 30 में बेच पाएंगे, क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग तो क्या ही होता है, एक मेटल का टुकड़ा काट देते हैं। नहीं। बट वो जो बिल आया उसके बाद हमें पता चला कि 50 में बेचना पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं। और उसके पहले हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए थे विच हेल्प्ड अस टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंजेक्शन मोल्डिंग का पैसा उधर से निकल गया, 300 पीसेस का इन्वेंट्री का कॉस्ट उधर से निकल गया। सो द मेजर रीजन वी वांटेड टू रेज 1 CR 2 CR वाज दैट वी वांटेड टू गो विद द मैन्युफैक्चरिंग फास्ट। वो प्री ऑर्डर से हो गया था, तो फिर फर्क नहीं पड़ा। एंड नाउ वी आर बिल्डिंग मोर टेक्नोलॉजी ऑन दिस। मतलब आज अगर लेट्स से यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट हाउ यू आर गोइंग इज ऑल्सो समथिंग विच यू नीड टू एनालाइज। बास्केटबॉल में वी गो स्ट्रेट बिकॉज वी वांट टू कवर द मिनिमम डिस्टेंस एंड रीच उधर फटाफट। 3 पॉइंटर पे मेरे को रुकना है, तो मैं 3 पॉइंटर पे रुक के आई एम ऑलरेडी इन इनर्शिया, मैं एक स्पीड पे बॉल को ड्रिबल करके आ रहा हूँ। 3 पॉइंटर पे मैं रुका, मेरा बैलेंस गया, मैंने 2-3 स्टेप ओवरशूट किए, फिर मैं वापस आया, 3 पॉइंटर लाइन से मैंने डाला। तो ये क्या था, लूज ऑफ 1.2 सेकेंड्स कि मैं डी पे रुकना चाहता था, पर मैं रुक नहीं पाया। मैं आगे गया क्योंकि मेरे को वापस आना था, मैंने ओवरशूट किया और बाद में मैं वापस जा रहा हूँ। तो ओवरशूट इंसान कितना कर रहा है वो पॉइंट पे पहुंच के, कि वो पॉइंट पे पहुंचा और कितना आगे गया, वो भी अपने मेजर कर रहे हैं। सो दो सेंसर्स आर इनबिल्ट, तो वो आपके बॉडी पे लग रहा है और वो सब कैलकुलेट कर रहा है कि वो पॉइंट के बाद आपने टर्न लेने में कितना टाइम लिया, वो सब मिलेगा कि टर्न ऑप्टिमल डायरेक्शन में लिया है या फिर एक्स्ट्रा टर्न लिया है और बाद में ओवरशूट किया, सब है। व्हाट पाथ यू आर फॉलोइंग। तो बैडमिंटन में यू हैव टू गो स्ट्रेट। आप अगर आर्क ले रहे हो तो यू आर लूजिंग ऑन सेकेंड्स। राइट। हाँ, तो अगर ये पॉइंट से वो पॉइंट जा रहा, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। तो वो कोई कैप्चर नहीं कर पाता विजुअली। ये डिवाइस जो अपने बॉडी पे लगा है वो कैप्चर करेगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कबड्डी इज अ स्पोर्ट्स वेयर यू हैव टू टेक आर्क, क्योंकि आपको मैक्सिमम लोगों को कवर करना है। राइट। तो अगर आप उधर स्टेट जा रहे हो तो आपको पता नहीं कि स्टेट जा रहे हो, तो उसमें भी ट्रेन हो सकते हैं पूरे को, स्पोर्ट वाइज ट्रेन अलग अलग कर सकते हैं उसका, बट दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। यार इतना इनोवेशन कैसे सोचते हो यार, दिमाग इतना 23 साल में आप इतना ज्यादा कैसे सोच रहे हो? लोग अच्छे मिल गए, लोग अच्छे मिल गए, कोचेस भी अच्छे मिल गए। वो लोग डिजाइनर्स क्या करते हैं कि उनसे बातें करते हैं और समझते हैं कि इनको प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ क्या रहा है, राइट। और फिर वो लोग अपना सोल्यूशन बनाते। हमारे पास कोचेस ही ऐसे मिल गए
उनको प्रॉब्लम ही पता है क्या है, तो वो लोग सीधा प्रॉब्लम बोलते हैं, हम लोग सीधा सोल्यूशन लाते हैं। तो ये सब हम लोग नहीं सोच रहे, ये सब जो लोग यूज कर रहे हैं ना वैसे वो ही बोल होता रहे है, वो लोग जो यूज कर, हाँ लिमिटेशन आ जाती है, कितना सोच लोगे, वही प्रोडक्ट फीडबैक को, देन वही है कि फीडबैक लेके आप उस पे बिल्ड कर रहे हो कॉन्स्टेंटली। यस। वन लास्ट क्वेश्चन इज कि आर यू स्टिल लुकिंग टू रेज, कि यू नो नो प्लान्स टू रेज एनी फंड्स? अभी नहीं करना, अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी आई थिंक 500-600 प्रोडक्ट्स तक वी वांट टू जस्ट डिलीवर द प्रोडक्ट, वी वांट टू अंडरस्टैंड क्या चेंजेस करना। वंस वी हैव सॉलिड प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि एसओपी और मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ मैं फिक्स कर दूंगा, उसके बाद उसके बाद मैं सोचूंगा कि रेस करना है कि नहीं। क्या पता शायद तब तक अगर प्री ऑर्डर्स आ गए और रनवे है मेरे पास, तो यू वोंट रेस। रनवे नहीं, वी वांट टू डू मोर R&D नाउ। हम लोग को इधर लैब सेटअप करना है, लैब सेटअप जो VO2 मैक्स बाहर से करवाते हैं वो हमें चाहिए अंदर इन हाउस, कि हम टेस्ट कर पाए। हमारा सारा कुछ अंदर होना चाहिए, ऐसा लैब होना चाहिए। मतलब आपका VO2 मैक्स से लेके हर जो भी टेस्ट चाहिए, जो एंटी एजिंग में से लेके जो भी करवाते हैं, सब चाहिए हमें, सब अंदर चाहिए हमें होगा। फोर्स प्लेट्स चाहिए कि आप अगर ये एथलीट इतना फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उसका अजिलिटी क्या है, उसका रिफ्लेक्स क्या है। किताब तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है? इसलिए रेस करेंगे, बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए रेस करेंगे। अगर रेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट के लिए नहीं करेंगे, सही बात है, वो फैसिलिटीज के लिए करेंगे। फैसिलिटीज के लिए करना पड़ेगा। और जब 600 प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में हो गए ना, तो कोई पैसे देने में क्वेश्चन नहीं आता। 600 प्रोडक्ट, हाँ, वैलिडेट हो गया, आपका मार्केट वैलिडेशन मिल गया आपको कि जब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था ना, हाँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी एक्चुअली वांटेड टू रेस, बट तब क्वेश्चंस आ रहे थे हाँ। कि ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा, कौन लेगा इसको, कौन ही ये सब करता है। वो सब क्वेश्चंस, अभी 600 प्रोडक्ट का सेल्स वुड जस्टिफाई एवरीथिंग, कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है, अभी उसको बेचना है एक चीज है, और उसको ऑप्टिमाइज करना है नेक्स्ट लेवल के लिए वो एक चीज है। वूप इतना सारा डेटा दे पाता है क्योंकि उसके पास इतनी फैसिलिटीज है यार। राइट, वो उसके पास 12 साल का डेटा ट्यून होके वो आज इतना कर पा रहा है, पहले से वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक स्केल में उसने प्रोडक्ट फ्री में भी दिए कि आप सब लोग यूज करो। डेटा उसमें से चाहिए वो उसको। लोग डेटा चाहिए, उसको डेटा चाहिए। मेरे को भी प्रोडक्ट फ्री में डाल कि जाए, मेरे को डेटा फुल आए, उसके बाद मैं मोनेटाइज कैसे करना है वो देख लेंगे। आपका टेक क्या है? मतलब ये भी वापस थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन थोड़ा क्यूरियोसिटी के हिसाब से आ रहा है कि वो तो ठीक है, दे पहन के कर रहे हैं। एप्पल वॉच भी कुछ ना कुछ लेवल का फिटनेस देता है, लेकिन वो वूप से तो बिल्कुल नहीं है। वो रिंग आता है, पता अभी सब रिंग, Ultra human। हाँ, ऑरा रिंग का चल रहा है कि वो बोलता है कि मैं सबको ट्रैक कर लेता हूँ रिंग से। व्हाट्स योर टेक लाइक उसके उसका? और अभी इंडिया में अभी सब बोट से लेके सब रिंग बनाने में लग गए पूरे के पूरे। कोई बना नहीं रहा है, वही है मेकी है, एक ही जन बना रहा है सबके लिए। अच्छा, बस ये लोग लेबल कर रहे हैं, Label। व्हाइट लेबल कर रहे हैं। सब लोग का नहीं पता, बट मैक्सिमम ऑफ पीपल आर व्हाइट लेबलिंग। वो बाहर का केस चेंज कर, हाँ। See what I've understood, because we did a lot of research in sports tech. What I've understood is Whoop बहुत अच्छा क्यों चला, उसके दो रीजन है। एक है कि उसका बैटरी लाइफ तोड़ू है। मेरे को गार्मिन भी 3 दिन के बाद चार्ज कर रहा हूँ, मैं एप्पल वॉच भी 2 दिन के बाद चार्ज कर रहा हूँ। रोज चार्ज करना Whoop मैं मचा सकता हूँ, वो मेरे को याद ही नहीं रखना कि मैंने चार्ज कब किया नहीं किया। दूसरा है कि आई एम एडिक्टेड टू दैट डेटा। मेरे को देखना है कि मैं स्लीप स्कोर मेरा क्या है। जब मैं पहनता हूं ना, मेरा गार्मिन है, जब मैं पहनता हूं मैं सो ही नहीं पाता, तो मेरे को कॉन्स्टेंटली कुछ होता है कि ये कुछ लगा है, अनकॉन्शियसली मैं वो निकाल के सोता हूं फिर। तीसरा है कि डिस्ट्रैक्शन, मेरे को जैसे ही मैसेज आता है ना, मेरे को इधर दिखता है, मैं ऐसे जाता हूँ ऐसे जाता हूँ, वो भी मेरे को नहीं चाहिए। और चौथा है कि कभी वो निकालना नहीं पड़ रहा है, वूप में उसका बैटरी लाइफ ऊपर से लगता है। तो अगर मेरे को पावर बैंक जैसा लगाना है तो वूप में लगाना है, वेटलेस है। तो उसने ये सारे एज अ कस्टमर के जो पॉइंट्स है ना, वो उसने निकाल दिए कि मेरे को ऐसा डिवाइस बनाना जो डिस्ट्रैक्ट ना करे, जो मेरे को ऐसे वेटलेस फील करे, बैटरी चार्ज पहन के खेल रहे यार। हाँ, जो विराट कोहली ऐसा बंदा भी वो पहन के घूम रहा है। तो उसने वो तोड़ा है, उसने यूजर को समझा है। और एप्पल और ये सारी कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को चार्ज करना पड़ेगा। वो इतना खाता है, वो कुछ खाता नहीं, वो हार्ट रेट चेक करता है, वो मोशन सेंसर, उसके लिए उसमें नहीं चाहिए। तो उस तरीके से वो लोग बहुत सेव कर रहे हैं। अभी रिंग जो है, वो रिंग में बैटरी इतनी ना के बराबर है।
वो उसमें हार्ट रेट इधर से चेक कर रहा है, जो भी टाइम लगेगा उसको अंडरस्टैंड करने में मशीन को, इधर से सबको आ गया है कि इधर सेंसर्स कैसे काम करते हैं, इधर से टाइम लगेगा, वो एक्यूरेट नहीं है। दूसरा है कि वो जो मैं पहनता हूँ ना, दैट हैज टू बी चार्ज्ड, ओके, बहुत फास्ट उसका ड्रेन होता है। हम लोग सारे प्रोडक्ट को खोल के बैठे, तो सब खोल के बैठे। सब खोल के बैठे, वूप को भी खोल के बैठे क्योंकि उसका तो सब्सक्रिप्शन पे आता है। हाँ। हमने बोला हमें चाहिए ही नहीं तेरा सब्सक्रिप्शन, हार्डवेयर फ्री पे देता है। हाँ, तो हमने तो खोल दिया, सब सब खोल के सब सीख रहे हैं कि लोग कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो वो जो रिंग है ना, उसमें बैटरी लाइफ इतना कम चलता है कि मेरे को वो अगर स्लीप स्कोर चाहिए तो उसके पहले तो मेरे को चार्ज करके सोना पड़ेगा उसको पहले। हाँ। तो वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, वो यूटिलिटी प्रोडक्ट बनने में बहुत है। ये और अभी लाइफस्टाइल न्यू एज वाले, मैं सही बोलता, रिंग विंग पहनने वाला, लड़के लोग रिंग पहन के थोड़ा odd भी लगता है। और लगता है, मतलब मेरे को, हम लोग तो पहनते नहीं है वैसे कभी। और वो पुराने में पहनते थे, मतलब वो एंगेजमेंट रिंग पहन के हमारे डैड और वो सब पहनते थे तभी। यार न्यू एज में तो कोई कुछ पहनना ही नहीं, बोला भाई कुछ चाहिए नहीं बॉडी पे, ऐसा उसमें हो सिर्फ जाता है। बैटरी लाइफ एक Battery life इशू का एक है, issue है। बाकी तो वो प्रोडक्ट चल सकता है, ऐसा नहीं है, बट वो लाइफ जैसे वो उस पे भी स्केल कर रहे हैं, और जो है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, उसको भी बहुत साल हो गए जो कर रहा है। सो आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द पॉडकास्ट इज डन, ठीक है। सो नाउ अपन ने बहुत ज्यादा बात करी, हाइपर लैब्स, हीलियोस, टेक, डेटा, हर चीज बात कर लिए। तो एक इसके बाद है, हम लोग करते हैं इसमें रैपिड फायर राउंड। यहाँ पे थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, आपके बारे में ज्यादा जानने मिले, एंड ऑल्सो ऑफकोर्स हाइपर लैब्स, हीलियोस के बारे में भी होगा। सो आर यू रेडी? रैपिड फायर है, फटफट आंसर चाहिए रहेगा। कॉफी और टी? कॉफी। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? हॉलीवुड। रनिंग और स्विमिंग? रनिंग। बुक्स और पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। ट्रेडिशनल वर्कआउट्स और टेक असिस्टेड वर्कआउट्स? ट्रेडिशनल। ये क्यों भाई? टेक टेक एंटरप्रेन्योर है, ट्रेडिशनल वर्कआउट कर रहे हैं भाई, सही है। इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट? इंडिया। डिजाइनिंग और मैनेजिंग? डिजाइनिंग। फिटनेस रूटीन और चीट डे? चीट डे। हीलियोस V1 और हीलियोस V2? V1। फेवरेट स्पोर्ट टू वॉच? बैडमिंटन। सॉरी? बैडमिंटन। बैडमिंटन है भाई, पूरा स्क्वॉश और बैडमिंटन। हाँ। स्क्वॉश इज डे बाय डे उसका वो बढ़ रहा है। हाँ। फेवरेट स्पोर्ट टू प्ले? स्क्वॉश। स्क्वॉश। अहमदाबाद में है स्क्वॉश? आना पड़ेगा मेरे को। तो फिर आप जहां पे आपने शूट किया था वहां पे मैंने देखा हुआ है। बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन टेक वर्ल्ड? डाइसन। सॉरी? डाइसन। डाइसन। नाइस। वन वर्ड टू डिस्क्राइब हाइपरलैब? टीम। टीम। अरे यार फोन कहां आ गया बीच में? फेवरेट फिटनेस गैजेट अदर देन हीलियोस? वूप। वन थिंग यू कांट वर्क विदाउट, सॉरी। वर्क विदाउट। हाँ। चाहिल। चाहिल। जो साथ चाहिल एंड अर्चिता, दोनों वो चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। मोस्ट मेमोरेबल शार्क टैंक मोमेंट? वी वेर कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि आगे की 3 लाइन स्क्रिप्टेड होती है, 3 मिनट, अच्छा। और वो लोग साले हिंदी में बुलवाते हैं। तो आर पिचोस के स्टैमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्स, उसके बाद उसका हिंदी बोला आपने। स्टैमिना यानी आंतरिक बल, एजिलिटी यानी स्फूर्ति, और रिफ्लेक्स यानी मेरा रिएक्ट करने का टाइम। ना हिंदी मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा। आंतरिक बल, एक तो मैं तोतड़ा हो गया था, आंतरिक 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 कर ही जा रहे। तो वो 3 दिन सबसे गंदे 3 दिन थे जिसमें मेरे को आंतरिक बल, स्फूर्ति और ये सब याद ही नहीं हो रहा है। एक तो गुजराती, एक तो उसमें हिंदी बुलवा रहे बोले। ड्रीम कोलैबोरेशन ऑफ हाइपरलैब? आई थिंक डिकैथलॉन। डिकैथलॉन। बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? अभी तो साला कुछ नहीं लगा। मजूरी कर रहे हैं, रोज टेंशन ही टेंशन हो रहा है। बोले घूमने के, जहां ये उम्र में जो लड़कियां घुमाते, कॉलेज में घूम रहे होते, हम बैठ के मजूरी कर रहे हैं, वैसा वाला। इफ नॉट स्पोर्ट्स टेक देन व्हाट? Some niche market, but niche. Niche market. Not huge. ओपन यूज नहीं, मास नहीं, niche. Niche. फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स टेक इन वन वर्ड? Hyperlab.
Hyperlap. Wow, that was nice. Okay, that's it for the rapid fire round. ये है हमारा लास्ट सेक्शन होता है हमारे पॉडकास्ट का, वो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल सेक्शन बोलते हैं हम लोग, जहां पे वी आस्क क्वेश्चंस. आपको लगता है कि यू आर गुड टू गो, यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस, आप बता सकते हो. So, few critics argue that sports tech can take the human elements out of training. How do you respond to it? कर सकते हो. हाँ, because now the cameras are so much well equipped with all the sensors and AI is doing so good कि आपका जो आंख से नहीं दिखता ना कि आपका ये इंजरी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो कैमरा आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपको स्प्रेन्स आने के चांसेस है, आपके मसल्स लिगामेंट टेयर हो सकते हैं, ये सब वो कर सकता है. बट आई थिंक टेक्निक्स जो है ना वो कोच को ही पता है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. टेक्निक इज समथिंग वो कोच के सिवाय कोई नहीं सिखा सकता. Like, what do you think? How would Helios respond to it? Helios till now is a assisting aid sort of device. Okay. वो ये नहीं देख रहा है कि आप कैसे जा रहे हो उस पे, वो ये देख रहा है कि आपको उधर जाना है, इतना टाइम हो रहा है, इतना डिस्टेंस है, डिफरेंस है, ये सब देखता है. तो कोच ही बोल पाएगा भाई कि उधर जो आप गए, बैडमिंटन में अगर मैं राइट हूँ तो राइट पैर ही आगे होना चाहिए, अगर मैं लेफ्ट का पॉइंट लेफ्ट पैर से कर रहा हूँ तो वो हीलियोस नहीं बोल पाएगा कि लेफ्ट पैर था तेरा, वो कोच ही बोल पाएगा. तो इट इज जस्ट अ एड, नथिंग मोर. So, जब से अपने पॉडकास्ट अपन ने शुरू किया है, the conversation has always somewhere driven around data. So, data is collected in the device while training, right? So, like any athlete wants his training data not to be shared with anyone, or like how do you ensure Helios का data integrity? We have privacy policy. Privacy अगर policy. उसको पब्लिक करना है तो वही करेगा, आपने वो क्लियर रखा हुआ है कि प्राइवेसी पॉलिसी अगर आपको चाहिए तो. और आपको वेरीफाई करना लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उससे आपका नुकसान है? कोई हाई एंड प्लेयर है, हाँ, से समझो कि वो बाद में देखिए हमें विराट सूट कोहली, करेगा. विराट कोहली चलो आपका प्रोडक्ट यूज करता है, वो उसका ट्रेनिंग स्टाइल उसका है, और उसने पूरा डेटा आपके पास कलेक्ट हो गया और आपने फिर उसको पब्लिक कर दिया. हाँ, तो हमारा प्रॉफिट है उसमें, बट वो बाद में हमें सू करेगा. वो सब नहीं करना. वो करना नहीं बोला, आप प्राइवेसी पॉलिसी आप ना नहीं चाहिए, आपको नहीं अगर देना तो आपका प्राइवेट. कंसेंट है तो फिर आप खुद दो, बाद में आप वेरिफिकेशन होता है और फिर आप दिखा सकते हो डेटा. So there is skepticism around the high price point of sports tech devices. How do you justify Helios price to individual consumers? First is the R&D, which has gone 3.5 years, the team, everything. Second is manufacturing. And third is कि we offer lifetime support. Lifetime support. Lifetime support. मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल का या 6 6 महीने का. महीने रिप्लेसमेंट है, कुछ भी हुआ प्रोडक्ट को विल टेक इट बैक एंड विल रिप्लेस इट. लाइफ टाइम सपोर्ट इज है कि आगे जाके डिवाइस में कुछ टूट गया है तो वो रिप्लेस हो जाएगा हमारे वहाँ. वो सब बहुत स्ट्रीमलाइन है, और ये सारी चीजें तभी हो पाएगी अगर हमारे पास वो लेवरेज है, वो कॉस्ट का. दूसरा कॉस्ट का लेवरेज, इसीलिए आप एक्स्ट्रा एडेड थोड़ा आर extra यू चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन एक्स्ट्रा सर्विस? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कोई भी अगर प्रोडक्ट लेते हैं अपने, तो उसमें अगर सर्विस के लिए वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं वारंटी को महीने एक्सटेंड में- करने के लिए, या नहीं, अभी नहीं फिर कर ऐसा कुछ भी कर रहे हो आप? और वो जो एग्जैक्ट बैठता है ना वही वी आर गोइंग टू चार्ज 6 महीने के बाद भी. दैट इज नॉट वेयर वी वांट टू हैव प्रॉफिट्स. Have you ever had a humorous misunderstanding with a client or partner while explaining Helios? मतलब द डिवाइस इज अ इक्विपमेंट, उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसको उसके सेंसर्स को 0 पे लाना पड़ता है. व्हेन वी शिप उसके बाद ये सब होता है. नाउ समटाइम्स क्लाइंट सेज दैट आई एम ऑलरेडी यूजिंग ऑल ऑफ दिस डिवाइस, आई ऑलरेडी नो के कैसे करना है. अच्छा, और बाद में डिवाइस जैसे नहीं चलता, वो फोन करता है कि ये यार डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपने अगर कैलिब्रेट किया ही नहीं है तो वो नहीं करेगा डिटेक्ट. तो वो एक होता ही है कि मैंने बोला था आपको प्लीज सुन लो कि एक बार कैसे चलाना है इसको, फिर आप. तो लेकिन आप इसके साथ वो मैनुअल कुछ देते हो? वीडियो सब है, सब जाता होगा उनको. पर लोग पूरा वीडियो कौन देखता है? कोई नहीं वो देखता, सकता है। मैनुअल ही नहीं पढ़ते. वो 30 मिनट का वीडियो है. हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी पड़ेगी डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए. Got it. What do you say to those who believe sports tech is just a passing trend and not a sustainable industry? टेक तो रहेगा हर वक्त लाइफ में. नाउ पीपल डोंट हैव थिंग्स वेयर दे कैन निकाडोफाई देयर बड़ास.
उनके पास कोई चीज ही नहीं है भाई लेकिन which ये can give them- स्पोर्ट्स टेक तो एक न्यू एज थिंग है। मतलब मैं तो इतने साल से स्पोर्ट भी किया, लेकिन मैंने कभी कोई टेक नहीं देखा है। बचपन में अभी भी मैंने देखा नहीं है कहीं पे। दिस इज वेरी न्यू एंड इनोवेशन है ये। हम लोग में एक एनालिसिस होता है जब हम पढ़ते हैं ना तब, तो उसमें एक चीज, जब स्पोर्ट्स टेक आई वाज स्टार्टिंग स्पोर्ट्स में इंडस्ट्री में, तब आई अंडरस्टूड के स्पोर्ट्स इज समथिंग व्हिच गिव्स यू रश, एड्रेनलिन रश। अभी लोगों को वो मिलना ही बंद हो गया। सही बात है, सब वो फोन यूज करके डोपामिन ही ले रहे खाली। वही डोपामिन चल रहा है ठीक खाली। है, अभी सबको पता चल रहा है कि हमें रश चाहिए। अच्छा लगता है, तो वो लोग स्पोर्ट्स में जाएंगे। उनके पास एडवेंचर करने के लिए हाइकिंग, ट्रैकिंग ये सब है, उनको और चीजें इधर भी चाहिए। अगर अहमदाबाद एज अ सिटी है तो अभी स्पोर्ट्स में बहुत डेवलप हो रहा है। पिकल बॉल हैज पीक्ड अप, पिकल बॉल, यस राइट। इट हैज पीक्ड अप, क्योंकि लर्निंग कर्व इज जीरो, फटाफट सीख जाते हैं, बहुत रश मिलता है क्योंकि आप जीतते हो। आप खेलते हो पिकल बॉल? मैं आना पड़ेगा आपके साथ खेलने के लिए पिकल बॉल। अभी भी वो लोग कोई भी स्पोर्ट्स में आ जाओगे। तो रश चाहिए सबको, स्पोर्ट्स टेक जाने ही वाला है, स्पोर्ट्स में जाने लोग इन्वेस्ट करने ही वाले हैं उसमें। यू मीन टू से दैट द क्वेश्चन कि इट्स नॉट सस्टेनेबल नहीं है, इट इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल। इट इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल, पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई। आज ये 50,000 का लग रहा है, लेकिन कल ये 50,000 आपको बहुत फायदा करेगा। यार आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो डिप्रेशन से क्योर हो जाते हो। 100%, तो 100%, आपको स्पोर्ट्स का एडिक्शन होने ही वाला है। 100%। मेरे को सोशल लाइफ का एडिक्शन है ही, तो मैं सोशल मीडिया पे फोन यूज करके जाऊंगा ही। सही बात है। स्पोर्ट्स टेक भी आएगा ही फिर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है कि ये सब जिस तरीके से सोशल मीडिया बढ़ रहा है, और जो बच्चे पूरे टाइम अभी जो अब फॉर एग्जांपल मैं थर्ड फोर्थ का था इतनी तब, बहन है, हाँ, वो उसको बोलना नहीं आता और उसको स्क्रॉल करना आता है। कितना गलत है। वो यूट्यूब पे ये चलती है, वो चेंज करना है। that is going to change soon. People are going to realize. How do you handle the pressure of keeping Helios updated with rapidly evolving technology, like maybe adding a high-tech hologram display or something cool? Like cool दिखाना कुछ बहुत अभी ऐसा हो गया, शोबाजी चाहिए। Think initially we did शोबाजी। Okay. Initially जब प्रोडक्ट ऐसे होम करता है ना, तो हाइपरलैब नीचे लिख के आता है और फिर वो एक डिस्टेंस पे जाता है तो सर्कल बनता था, ये सब होता था। बट देन आई रियलाइज्ड के स्पोर्ट्स में या फिर फिटनेस में ये सब चीजें इज जस्ट एडिंग अ कॉस्ट। लोगों को थोड़ा कॉस्ट कम चाहिए, तो वॉट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड वो वर्जन 1 में जा सकती है। वर्जन 2 कैन बी ऑफ दिस सॉर्ट, जिसमें लोग जो एस्पायर करते हैं, जो जिनके पास पैसे उनको खरीदना है, उनके लिए वर्जन 2 हो सकता। वर्जन 1 शो वाला। हाँ शो वाला रहेगा, वो होगा शो वाला, उसमें होगा। लेकिन वो भी लेने वाले लोग हैं, वो भी लेंगे। चाहिए। अभी इसको प्रूव करना है कि ये अच्छा डिवाइस है, इसलिए वर्जन 1 इज बेस्ट। वर्जन 2 में एक लाइन ऐसे पूरी प्रोजेक्ट होने वाली है, अच्छा, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ डॉट। एक पूरी लाइन आपको बोलेगी कि आपको कहाँ जाना है। ओह, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। What's your take on the notion that sports tech can create an over-reliance on gadgets rather than developing natural skills? आई थिंक स्पोर्ट्स टेक कैन जस्ट मॉनिटर यू, Monitor you. इट कैन नॉट टीच यू समथिंग। Oh, right. दो टाइप के कोच एनालिसिस। तो चाहिए ही, कोच तो भाई इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है। राइट। हाँ, लेकिन वो आप कभी- ट्रैक करने के लिए, डेटा ट्रैकिंग के लिए वो डेटा device आपको देगा। कोच वो डेटा पढ़ के आपको बोल सकता है कि आपने ये, या इंप्रूवमेंट करना है या ये करना है। आपको एक बार के लिए एलएलएम भी बोल देगा कि आपका ये गलत है, पर टेक्निक तो एक कोच ही सिखा पाएगा, उसके सिवाय। Do you think the Indian market is ready to fully embrace advanced sports technology, or is there still a long way to go? लॉन्ग वे टू। Long way to go. What do you think? Like कितना टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है आपको? मतलब बैंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई ये सब जगह तो फटाफट हो जाएगा, बट अगर देखे ना तो अपने रेसलर्स एक ही जगह से आते हैं, हरियाणा। That's right. Wrestling में काम आएगा ये? हाँ, उधर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्सेस चाहिए आपको। ओह, वो मार रहे हैं, मेरे को नीचे झुकना है उसके पहले, तो मेरा टाइम देखना है, मेरे को तब करके मैं। wrestling में कि MMA में बोल रहा हूँ? रेसलिंग में भी, Wrestling में। कोई भी स्पोर्ट्स में आपका रिफ्लेक्सेस उतना हाई होना जैसे ही- मेरा भाई है, वो MMA करता है, वो वो तो- प्रैक्टिस करता है, हाँ। तो उसमें तो रिफ्लेक्सेस तो बहुत जरूरी है, इधर कभी भी पड़ेगी, वैसा होता है। रेसलिंग में भी। रेसलिंग में भी है। अभी अपना इंडिया फुल्ली रेसलर्स एक ही जगह से आता है, हरियाणा से ही आएंगे, उसके सिवाय पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वो इसलिए कि उधर का खाना, उनका डाइट पहले से हरियाणा का सेट है, सब आपके से एनवायरमेंट, आपके से हाइट, बॉडी, राइट, ऐसा उनका है। एनवायरमेंट ही ऐसा है, तो रेसलर्स उधर से ही आएंगे। अभी हरियाणा में टेक कोई ले ही नहीं रहा। हाँ, नहीं वो लोग टेक नहीं, सही बात है। हाँ, तो अभी टाइम है। मतलब अगर मेरे को नीचे तक जाना है ना, ग्रास रूट को स्पोर्ट्स टेक पहुंचाना है,
तो टाइम लगेगा। अंदाज क्या टाइम क्या ले रहे हो? 10 years कि 5 साल? कोई आइडिया कोई idea नहीं। कितना फास्ट हो रहा है उस पे, और हम लोग कितना फटाफट उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं उन पे, हम लोग कितना सस्ता स्पोर्ट्स में दे पा रहे हैं उस पे। सस्ता इंडिया में सस्ता चाहिए। लेकिन यार इतना सारा टेक और ये सब करके सस्ता करना, इट्स वो करेंगे। हम लोग भी कहीं ना कहीं वही करेंगे। जो नाइकी एडिडास ये सब 5,000 6,000 रुपए के लोग एक टी शर्ट ले रहे या कुछ भी ले रहे, मैं उससे बेटर क्वालिटी इंडिया में बना के उनको 1,000-1,200 के रेंज में दे रहा हूँ। yes एंड आई एम टेलिंग द कंज्यूमर्स एंड दे, मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि जब वो लोग रिव्यू देते हैं, तब यार मैंने नाइकी लिया लेकिन मुझे नहीं मेरे को लग रहा है कि यार एथफ्लेक्स यहाँ पे इंडियन कंपनी, और वो मेरे को बोले नाइकी से अच्छा लगा मेरे को, तो एक अलग खुशी आती है कि यार मजेदार है भाई वो 60-70 साल से। लेकिन हाँ मैं स्मॉल्स के, लेकिन मैं भी एक विजनरी बंदा जब सोचता है और ऐसा फीडबैक मिलता है तो एक मोटिवेशन मिलता है कि यार और करना है। 5 साल अगर आप घिसे हो ना, ये एक रिव्यू से आप और 5 साल खींच सकते हो। एग्जैक्टली, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर कमिंग अलोंग। बहुत लंबा सफर लेके आप आए हमारे स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलेंगे स्क्वॉश खेलने के लिए, I'll be there. I have a gift for you from Athflex, a small gift. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Done it. That's it, guys. Good to go. Yeah, good to go.